were talking about ocean bottom relief yesterday. Any questions in that? I'm good, Yash. I'm doing fine, absolutely healthy, happy. I hope all of you are also doing well. आज शाम के लिए एक क्लास अनाउंस किया है ऑफ 8:30 पे किया है. 9 के बाद फिर अपर लिमिट बहुत कम हो जाता है. Get that? So two announcements right in the beginning. एक तो ये कि अभी शाम का सबको मिल गया confirmation for the environmatics class. You can enroll into that environmatics class. ठीक है. So 8:30 we have the environmatics class and sorry कल की छुट्टी कैंसिल कर रहा हूँ आपकी. Can you see your planner for tomorrow? एक climatology की क्लास डालिए. Climatology की क्लास डाली है. Why? Because we are about to go to advanced climatology और हमने basic climatology में we have not done air masses. So when I am going for advanced climatology classes, when oceanography is over, I want to take you to cyclones. I want you to take you to other things also, frontal weather. But air mass तो हुआ नहीं. So because air masses have not been done, so that is why I put a class for tomorrow. Is everyone okay? So I don't want that to be missed because advanced classes 3 रखी हमने climatology की. And for people who are new to this course, I believe that most of you are beginners in geography. Most of you are beginners in geography. Sir, 8:30 PM class 9 PM शिफ्ट नहीं होगा. दुष्यंत को अपर एंड बहुत लो हो जाता है. आप 9 बजे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं. I know some of you are doing your GS classes. They run up to 8:30, 8:40, 8:50. So आप उसमें बीच में ज्वाइन इन कर लीजिएगा स्टार्टिंग में. I will also take some time because then what happens is upper end फिर बहुत ज़्यादा देर तक I don't want to keep students over there. ठीक है? So that is there. So 8:30 has been kept keeping in mind that your class starts at 6. Evening people start. Your class starts at 6. By 8:30 it should be over. So I know you might be looking for dinner. Yes. So बोलता तो मैं ही हूँ. तुम लोग तो सुन ही रहे हो तो most of the times. But anyways, I wanted to keep it 8:30, so I've done it 8:30. Okay, that's one thing. Second thing is people who are new to this course, my physical geography course, all the 3 important topics which we have: geomorphology, climatology, oceanography. I have broken them into elementary geomorphology and advanced geomorphology. So elementary geomorphology, we were supposed to have 6 classes, but because of the schedule, we had only 4. Climatology, you have understood now air circulation, everything, but air masses were not understood, so I wanted you to understand that also. Then only I want to put you into advanced things. So advanced climatology is coming, where we will be talking about cyclones, where we will be talking about climatic classifications. वो सब समझने के लिए थोड़ा oceans पता होना चाहिए, थोड़ा सा land पता होना चाहिए. That is why I have done that. ठीक है, सर्वेश्वर, I get that. बीच में आप डिनर कर सकते हैं. I know that 9 PM, इसीलिए मैंने 8:30 तो रखा है. You can manage that. या कल 9 कर देंगे. It's okay. Good morning. Due to some family issues, not able to attend the live classes, completing it in recording. Okay, Dolly, as long as you are not missing the classes, perfectly okay. Good morning. Priyanka says sorry for being late. Okay, Priyanka, first 5 minutes are always your doubt and my announcements. So announcement is an environmatics class tonight at 8:30 PM, and we will be keeping it for the last week of this month. I wanted to do that because I was working on the book and was creating a lot of question banks. So the intention is to put you more into questions. Hi Priyanka, good morning and Pranam, welcome. तो शुरू करें. हाँ, एक आंसर आया जो आप लोगों ने देखा होगा. I put a comment also on that. It wants to end the answer by telling us that because of ocean bottom relief, Atlantic Ocean is the busiest ocean. कोई तर्क है इसका? There is no connection. Ocean bottom की वजह से वो busiest ocean. So not that like I'm pointing out at someone, but I'm just saying that we are so caught up with this idea कि भाई introduction करना है और जो है institutes हमें introduction सिखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं in the name of it, वो भी रटे रटाए होते हैं. ये सुनो. So I would always say कि एक nature होती है introduction की, एक conclusion की. Introduction is in what bigger context we are talking about. ठीक है? And conclusion is the lasting message which we want to give. ठीक है? अगर मैं ये कहूँ ocean bottom relief, knowing more about ocean bottom relief, will it be of any significance to human beings? Tell me, will it be of any significance to human beings? Yes? अगर ये आप आखिर में खत्म करो तो ज्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा? If you really want to bring that conclusion का element ना, चीज को logical end पे लाना है, तो आपने पूरा बताया that this is the ocean bottom relief of Atlantic Ocean and everything. A greater knowledge, or as the human knowledge frontiers of ocean bottoms expand, as हमारे frontiers expand होंगे, our ability to benefit from that in areas of disaster management, seabed exploitation and conservation, yes, resources of the ocean bottom exploitation would be enhanced. ये खत्म हो गया. ये तो ठीक है ना, समझ में आता है, लॉजिकल है ना. See, I've always said your conclusion has to be logical. फालतू की अंग्रेजी बनाकर ये वो बाद में करेंगे, वो भी हो जाएगा. We will have that also. है ना? Sir, I wrote about OBR, sir, but I think not reviewed. भाई नहीं, मैं तो कहीं नहीं रहा, मैं सारे रिव्यू कर रहा हूँ. I'm not saying that you put there and I am going to review all of them. I just said that you get an opportunity to write. I have something, और अगर मुझे कहीं पर गड़बड़ लगता है तो मैं उसमें बता देता हूँ. True. तो मैं इसीलिए मैंने कहा कि पहली चीज किसी ने अब वो लेवल नहीं है ना. I am saying अब हर एक आंसर में आप सोचिए, उस आंसर में आप सबने वो आंसर पढ़ा, वो लाइन गलत है. अब अगर मेरे पास 500 ऐसे आंसर है, मैं सबके टिक करके गलत करने लगूं तो यार इट इज रियल दिस थिंग ट्रेजेडी यार. मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई टीचर फर्जी आंसर दे रहा, कोई कभी चेक नहीं करता, और यहाँ पर आप जो उस चीज को मिसयूज करने लगो तो कोई मतलब नहीं है.
और यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यार वो आंसर अभी कंक्लूजन में। और सबसे बड़ी बात, सबसे बिगेस्ट एरर इज दैट यू डू नॉट राइट द वर्ड कंक्लूजन बिफोर राइटिंग कंक्लूजन। कितनी बार बताया है कि यार ऐसे आंसर शुरू नहीं होता है दैट यू राइट इंट्रोडक्शन एंड देन यू राइट अ पैरा एंड देन यू राइट बॉडी एंड देन यू राइट कंक्लूजन। ये पता है कहाँ से हुआ है? टेलीग्राम मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, जिसने कभी कोई कुछ नहीं किया, सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सब खोल के बैठ के अपना अपना दुकान, और उनको आंसर आता है नहीं आता है, चलो आओ बच्चों इंट्रो सिखाता हूं। उसमें 4 इंट्रो कहीं से टेपे होंगे, शायद हमारे ही बेस्ट आंसर से टेपे होंगे। रिमेंबर वी पुट सैंपल्स, मैं सैंपल भी कम डाल दो। हमारे सैंपल से अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा, उसी सैंपल का कंक्लूजन लगाएगा, इंट्रो लगाएगा, ही डजंट इवन नो, उसको आंसर पता भी नहीं है, स्टूडेंट ये लिख रहा है। आप क्लियरली बताइए दैट द एग्जामिनर हु इज लुकिंग एट इट, ओशन बॉटम रिलीफ होने की वजह से Atlantic Ocean is the busiest. Does that show a very big conceptual lack of clarity? Because first of all, ocean bottom relief are there in every ocean. It is not unique about Atlantic Ocean. And if that leads to busy, then all other oceans should be busy. तो ये वाला काम अभी नहीं करना है। द क्लास इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट देन इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइट आंसर्स। कल हमने देखा कि उसमें एरर थे, डायग्राम में एरर थे। सो द इंटेंशन वाज टू ब्रिंग दोस एरर्स टू एवरीवन सो दैट वी कैन अवॉइड देम। Today's question किसका था? I don't even know. But that question had a very clear error. That first of all, you don't write the word conclusion and then write that paragraph. Second is conclusion is a logical ending to it, and I gave you a sample also. So learn from this. यार ये चीज है, और आपके आंसर्स जहां पे मुझे अच्छे भी लगते हैं वहां I always say good work. Yes. कल मेरे ख्याल से पूर्वी वाले में कुछ अच्छा लगा था, या किसी एक में अच्छा लगा था, तो I said this part is good but this part you went wrong. So learn from a collective evaluation also. अभी मैंने बिल्कुल कोई आंसर इनवाइट नहीं किए हैं for evaluation. When that level comes, I will be doing that. पूर्वी ने कहा yes sir, you told me. तो मैंने अभी आपसे लोगों से कहा ना, पूर्वी का था, किसी का था, I don't remember the names. But through that, when you get a comment on something, उस आंसर को जरूर देखिए कि यार अच्छा इसमें ये कमी थी, I can write better. So that would accelerate the process and it will work for you. Please don't see if a fault has been found in your answer as अरे सर ने मुझे गलत कह दिया. Please don't take it personally. मैं सच में नाम नहीं देखता हूँ. And when I point out that error is advice to everyone in the group. There are people who are not even studying geography, वो पहले geography कर चुके हैं, और probably they are just into this because they think that they can create some value out of it. उन सब के लिए एक message है कि क्या error है, you don't do it. How can you save yourself from the error? So please never take it personally कि my answer was this and everybody saw. अरे you got an opportunity, आपके आंसर को उसी टाइम live evaluate भी कर दिया गया, ठीक है? So with this I would want to start the class. I hope you got my message, and through that message everyone got this, that answer में conclusion में ऐसा नहीं करना, ठीक है? अब एक बात बताओ ना, I end the class every day. So I say okay, all of you goodbye, take care of yourself, have a nice day. That's one way of answering, ending it. The second way is okay, I hope you created some value out of this class. Today I have given you these assignments. If you do this by this time, I will also check and revert. Is that also a logical ending? Yes or no? Okay. Third can be, I am sure that you understood these things, but I want to tell you there is a higher level also possible. If some of you are interested, you can explore that book called Geography Made Simple. This chapter ye try kariyega. Makes sense. All three conclusions are fine. And if I say, okay guys, it was great fun talking to you, and I'll meet you tomorrow. There are a lot of Netflix series which I have to complete, and देखते हैं. वैसे अब तुमने फीस दिया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही. Let me end this. That's also an answer. That's also an ending. That's also an ending or not? That's also an ending. खत्म. But that's not an appropriate ending. अब पूर्वी सर I feel blessed, जो हमें evaluate भी करते हैं, scold भी करते हैं. भाई scold क्या, मैंने तो ये लिखा है, अब ये लिखा है भैया ऐसे मत करो. अब इसको आप स्कोल्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो. I would say this is a corrective feedback. है ना? तो लोगों ने हमें स्कोल्ड कर दिया. हाँ भाई आप मतलब लार्जर देन लाइफ हो गए. मैंने तो कहा बहुत सारे टीचर्स ने तो अभी ये भी कहना शुरू कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल नॉट इवैल्यूएट. मैंने टीचर्स इवैल्यूएटिंग, अरे यार आपका मोरल ही डाउन कर देगा वो तो, अगर आपने एरर निकाल दी. I don't know where these teachers came from. Where did this world happen, this change happen, that someone who is taking all the effort to give you feedback, वो आपका कॉन्फिडेंस ही गिरा देगा. क्या फायदा उस फेक कॉन्फिडेंस का जहां आप सर के नोट्स चेक रहे हो. So that's what I'm saying. So my invitation is that keep growing from the feedback. Whether you take it scolding, फिर ऐसे अरे टीचर ने तो स्कोल्ड किया, मैं अपना दिल बड़ा रखता हूं. मैं तो आपसे कह रहा हूं भाई, मैं जानता भी नहीं है योर मेल फीमेल और बॉट, है ना? उसमें तो आता है, आपने देखा ना, कैप्चा आता है ना आजकल व्हेन यू आर लॉगिंग इन, सो दैट आई नो यू आर नॉट अ कंप्यूटर. हु नोस. हाँ, तो जहां कंस्ट्रक्टिव है वहां कंस्ट्रक्टिव चल रहा है, जहां डिस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं होता उसे करेक्टिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है? सर आप अटेम्प्ट वेस्ट होने से बचा रहे हो. खुशी ये तो मुझे नहीं पता अटेम्प्ट वेस्ट होने से बचा रहा हूं या नहीं बचा रहा हूं. व्हेन यू गो ओवर योर अटेम्प्ट, दैट शुड बी अ सीरियस स्टेप. एवरीवन प्लीज गेट दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. सो देयर इज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स, है ना? And he's doing this out of curiosity. मम्मा पापा ने कहा, you know, like just to test waters, and he fails. ऐसे आप लोगों ने अपने फाइनल ईयर में you gave the examination and you failed the examination. Will you feel bad about it? No. Will you learn anything from it? Seriously no. सच में नहीं होगा. Will this attempt add to your experience? No, it will not. आपको अपने एरर भी नहीं पता. अब इसके बाद you want to write the exam once again, so you are as good as zero. Whereas I'm saying a person, जैसे अभी किसी ने कहा कि सर आप अटेम्प्ट वेस्ट होने से बचा. नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ you are giving your best. You gave your best. ठीक है? You know that your CSAT this time was a little weak, but you thought that you have mathematics which is okay, आप कर लेंगे. ठीक है?
You did not prepare well for current affairs and you failed. Will you feel bad? Or not? This time you prepared well, you gave your best. हाँ ठीक है, दो चीज में नहीं कर पाया, you'll feel bad. Yes. Do you want to diagnose why what was left behind? Will you diagnose? Yes. Will somebody have to say कि आप दोबारा से दो, or will you be inspired to write again? So I'm okay with failures. I'm okay with failures because failures teach us, and UPSC is going to make you face many failures. तो मैं किसी का अटेम्प्ट नहीं बचा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं एक कोशिश करता हूँ कि आप ए से बी की तरफ आ जाए. एंड आई एम सेइंग बी में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप इस एग्जाम को टफ कर जाओगे. अभी भी बहुत मीडियोकर स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल इन द एग्जाम. अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स आर ओनली पासिंग, ऐसा नहीं है. मीडियोकर स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, बट दे आर नॉट कमिंग हियर आउट ऑफ दिस. ये एकदम केयरलेस अप्रोच है, ये नेटफ्लिक्स अप्रोच है. ये टीचर भी देखा, वो टीचर भी देखा, ये बुक भी देखा, वो बुक भी देखा, सबसे टॉपर से भी सुन लिया. सर कम से कम में कितने में हो जाएगा? क्या खरीदने आए? व्हाट हैव यू कम फॉर? हैव यू कम फॉर छोला भटूरा भाई? कम से कम कितने में दे दोगे? नहीं तो मैं दूसरे उस पर जा रहा हूँ, वो तो स्विगी वाला डिस्काउंट दे रहा है. अंडरस्टैंड? नो, स्विगी में गो एंड बार्गेन. इट इज योर एफर्ट्स. इसमें बार्गेन नहीं होता है. कहता है. सो माय रिक्वेस्ट इज, ये देखिए ये सब विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं. दिस इज अ विश. दे आर जस्ट applicants of civil services examination. There are 10 lakh such people, and this is action, guided action. And I want to tell you, there are probably only 1 lakh people like this. मैं सिर्फ आपको एक सीरियस एस्पिरेंट बनाना चाहता हूं और कुछ नहीं. That is my attempt. And once you are a serious aspirant, उसके बाद I want to give you tools which will help you reach the top. That is why I am here. ठीक है. So which सभी चाहते हैं. There are so many things. So jump from an applicant to an aspirant, and the competition is not that stiff. 1 लाख में 10 लाख लोगों से आपका कंपटीशन नहीं है. 1 लाख से है, और उस 1 लाख में भी बहुत से लोग तो सिर्फ वीडियो देखेंगे. इसमें बहुत से लोग अपनी मिस्टेक्स करने वाले हैं, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट सम ऑफ यू हैव गिवन योर प्रीलिम्स एंड फेल्ड. आप अपने हिस्से की मिस्टेक्स कर चुके हैं. बट द गुड थिंग वुड बी लर्न फ्रॉम दोस मिस्टेक्स. ठीक है. ये वाले लोग पता भी क्या कर रहे हैं, अभी इनकी प्रिपरेशन भी शुरू नहीं हुई. दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज. टॉपर कैसे मैं इंटरव्यू में जाऊंगा और फिर मैं कैसे बोलूंगा, एंड देन द होल बोर्ड विल स्टैंड अप, जय भारत जय भारत जय भारत, ऐसे होने लगेगा. ये वो वाले, ये नशा कर रहे हैं. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट वो ये सोचता है. उसके बाद वो क्या करता है, सबसे पहले सर ऐसे के बारे में बताइए. सर हाउ कैन आई राइट सर ऐसे? शुड आई स्टार्ट राइटिंग एवरी वीक सर? एंड हु विल चेक सर? मुझे नया नया कुछ नहीं पता है. सर शुड आई राइट एवरी वीक सर? यू आर द बेस्ट टीचर सर, यू आर द ओनली टीचर सर, आपसे बड़ा कोई नहीं है सर. एंड हु विल चेक माय एसे सर? ठीक है. इसको कहना है ओवर स्मार्ट है. ये कौन है? ओवर स्मार्ट है. इसमें तो बाकी सब बेवकूफ. ठीक है. तो उसके बाद सर मेरा बस इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए एक बार. मेरा बस इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए. इनफैक्ट सर मैंने आंसर लिखा ही नहीं. आंसर में बहुत टाइम लगता है सर, इसलिए इंट्रोडक्शन लिख दिया, आप बस पढ़ लीजिए. ठीक है. ये कौन होता है? ये महान लोग हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में सर पेन उठाया, कोई तो चेक करेगा. तो इन लोगों को क्या किया जाए? इन लोगों को एक ही चीज की जाती है, इन लोगों को ब्लॉक कर दो. ये मेरा तरीका है. उसके बाद कहते हैं टीचर बहुत एरोगेंट है यार. भाई यार, इन लोगों से जितना वो करोगे ना, अगर आप नहीं चेक करोगे, आज तुम इनको प्लीज कर दो, कल तो गाली आएगी आएगी. गाली इज इन द पाइपलाइन, वो कभी भी आ सकती है. पहले ही कर दो ना, पहले कर दो. बाद में पता है इसका इंट्रोडक्शन अगर इनका वो बोल दो ना, इसमें ठीक कैसे करूं, आपको ज्यादा आता है क्या? भाई पढ़ने का ही नहीं, पढ़ने का ही टेंशन ही नहीं लेना. आप महान हैं, ब्लॉक कर दें. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एनर्जी बचाइए, इस पे काम करिए. हु आर यू, प्लीज आइडेंटिफाई. भीड़ नहीं चाहिए, बट वो लोग चाहिए जो सच में अपने सपने कुछ देख रहे हैं. एंड लेट्स डू दैट. और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे टीचर्स, अमेजिंग टीचर्स कैन सपोर्ट देम. अमेजिंग टीचर्स कैन सपोर्ट देम. कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं. एंड माय बेस्ट विशेस टू द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स की खूब अच्छे से काम करें. मजा ही मजा है. चलिए, तो कल हमने देखा ओशन बॉटम रिलीफ. ओशन वाइज वी हैव स्टार्टेड, एंड व्हाट इज इट? दिस वाज दैट. ठीक है. तो ये आपने मेमोराइज भी कर लिया होगा. कुछ लोगों ने आंसर लिखने की कोशिश भी की, अच्छी बात है. फ्रॉम माय साइड आई डोंट कंसीडर दिस पार्ट वेरी टफ. आई कंसीडर दिस पार्ट वेरी इजी. ठीक है. कुछ ही बोलते हैं सर ऑप्शनल में आप सपोर्ट करते हो, पर जीएस में कोई नहीं है. तो कोई बात नहीं, कुछ ही जीएस में भी कोई आ जाएंगे. अब सबका तो हमने नहीं लिया. अब आप कहोगे कि सर देश में आप जैसा नेता चाहिए, कुछ टीचर नेता भी बनना चाहते हैं सर, तो आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आ जाते? तो भगवान ने कुछ ही मतलब 5 सेंस ऑर्गन दिए, एक लाइफ दी, उतना ही कर पाएंगे भाई. और एक बात बताओ खुशी, अगर मैं आपको स्विमिंग सिखाता हूँ स्विमिंग पूल में, तो आप मुझे मैसेज लिखें कि सर स्विमिंग पूल में तो आप सिखाने के लिए, सर रिवर में कोई नहीं सिखाता. तो खुशी, आई वांट टू टेल यू, देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी में मेरे साथ काम किया, जीएस भी बहुत अच्छे से कर लिया. क्यों कर लिया? बिकॉज बेटा लर्निंग है ना, टेक्निक्स तो सेम ही है. सो दिस गर्ल, क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. फर्स्ट अटेम्प्ट, कॉमर्स बैकग्राउंड, शी क्लियर्स हर प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स के बाद she doesn't have time for GS and optional, all of them. So she said कि सर मैं तो सिर्फ GS सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल से ही कर रही हूँ सर, और GS वाला सर जो होगा देखा जाएगा. आपको वो आंसर भी कुछ दिखा दूंगी. वो लिखती इतना अच्छा थी यार. तो जो फीडबैक उसे ज्योग्राफी में मिला, वो उसने GS में भी अप्लाई किया, वो किया है.
अब सौरभ कह रहे हैं सर पवनीत सर, प्रतीक सर भी तो हैं जीएस में। हाँ खुशी बिल्कुल है, आप रीच आउट करिए ना, अच्छे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, बिल्कुल अप्लाई करिए। देखिए यार हर टीचर अपनी यूनिकनेस लाता है ना, तो आप उनकी यूनिकनेस लीजिए और अच्छी चीजें लीजिए। और ये मेरे ख्याल से पता चल जाना चाहिए यार कि कौन सी चीज। अब एक आंखों का तारा बैच भी है, एक टीचर का बैच है, तो उसमें उन्होंने रखा आंखों के तारे बैच। अब आंखों के तारे बैच मतलब मैं तो क्या कहूँ, माय वाइफ हर्ड दैट, पता नहीं कैसे उन्होंने वीडियो मैं देख रहा था, तो बोली आंखों का तारा बैच, ये क्या क्या पढ़ा क्या है, यूपीएससी। अच्छा तुम्हारा तो कोई तारा वाला नहीं, नहीं मैंने कभी बनाया नहीं। प्रियंका सजेशन है बाबू सोना बैच, प्रियंका अच्छा वो है, बाबू सोना भी रख सकते हैं, है ना। मासूम मुन्ना बैच, ठीक है, लाल लाली बैच, बहुत सारे हो सकते हैं। सो ये आपको सोचना है, इतनी समझ तो आपको रखनी है कि कौन सा टीचर कैसे सपोर्ट कर सकता है ना। पोगो लवर बैच, शक्तिमान बैच हो सकता है ना। आप देखेंगे ऐसे नाम रखे जाते हैं, तोड़ दूंगा बैच, आओ तो सामने बैच, हम ही हैं बैच। तो ये सारे मतलब आप समझ रहे हैं। वैसे दे कुड हैव जॉइन बालाजी प्रोडक्शन, ऑल्ड बालाजी में यू नो दे कुड हैव गिवन क्रिएटिव आइडियाज टू एकता कपूर, बट वो आ गए इधर, तो इधर का भी कोई दिक्कत नहीं है ना। खतरनाक लर्नर बैच, तोड़ देंगे फोड़ देंगे एंड ऑल दैट, गागर में सागर बैच है, गागर में सागर भी, बिल्कुल। तो ये बहुत अमेजिंग बैचेस है, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। मेरे बैच का कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बैच, मास्टर स्ट्रोक वर्ल्ड ज्योग्राफी बैच, है ना। तो मैं बना नहीं पाया, सोच रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है, हाइड्रोथर्मल वेंट बैच, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कुछ बैच तो समझ में नहीं आते, ठीक है। एबिसल हिल बैच, छोटा सा सी माउंट बैच, वो भी सही चलेगा। वी विल रॉक एवरीवन शॉप, अमेजिंग सोनिया, बहुत सही। तो अभी क्रिएटिव तो हो, आप आंसर क्यों नहीं बनाते हो, बढ़िया बना सकते हो, है ना। सो ये वाला क्लियर है सबको, ये वाला आसान है, इसको पक्का मेमोरी में डालिए। और आपके जीएस के जो टीचर्स आप देख रहे हैं वो आर वेरी क्लियरली ओरिएंटेड टू द एग्जामिनेशन, यू आर स्मार्ट पीपल, उनकी जरूर जो भी बताना चाह रहे हैं वो करिए। एंड जो मुझसे ले सकते हैं वो लीजिए, दैट इज ऑल। एंड यू विल फाइंड सो मेनी गुड टीचर्स, ग्रेट टीचर्स, एंड इट विल बी वेरी स्टूपिड फॉर मैं कहूँ कि यार मैं ही सब जानता हूँ, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो सारे ज्योग्राफी बैच नेम से ही हो जाएंगे तो ठीक है, आई एम नॉट इनटू दिस। सो अटलांटिक का हमने कर लिया था, अटलांटिक का मैंने आपको कंट्रीब्यूशन भी दे दिया। इसमें मुझे एक चीज आपको बतानी थी कि एक ना क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आ गया स्टैंड अलोन क्वेश्चन 10 मार्क का, एग्जामिन द मिड अटलांटिक रिज। अब यार मिड अटलांटिक रिज पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन, सो बिग प्रॉब्लम। भाई पूरा पूरा अटलांटिक क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड दैट इन अटलांटिक क्वेश्चन व्हाट विल आई से, I'll say the sides, the continental margins are this, these are the bases, these are the trenches, these are the islands, this is the ridge and these are the marginal seas। ये बताया, सीक्वेंस बता दिया था, 5 things are to be written on that, so that is clear। सिर्फ रिज पूछ लिया, कैसे करूं। तो आई नो दैट रिज इज एस शेप्ड, एक सेंटेंस। सेकंड थिंग इज डॉल्फिन रिज, चैलेंजिंग रिज, 2 सेंटेंस। थर्ड इज आइसलैंड टू बोवे आइलैंड, टेकन 14,000 kilometers, taken 4,000 meters high at places, taken as many islands, taken। खत्म हो रहा है, क्या करूं। इट हैज गॉट फ्रैक्चर जोन्स, फॉल्ट लाइंस, ये भी हो गया। अब हमें वी नीड टू गो टू जियोमॉर्फोलॉजी टू सेव आवर लाइव्स, अ डायग्राम हैज टू कम, समझ रहे हो। सो दैट इज व्हाई आई थॉट दैट आई मस्ट टेल माय स्टूडेंट अभी से, बिगिनिंग में ही, व्हेन वी आर राइटिंग आंसर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन। अगर उसने, if instead of, and the examiner is becoming smarter, instead of asking the whole big topic he is asking sub topics, सब टॉपिक पे एक्सपेंशन आना चाहिए। तो ये तो आपके क्लास लेक्चर से निकल कर आया, क्लास लेक्चर, विच क्लास लेक्चर, ओशनोग्राफी क्लास लेक्चर, दिस शुड कम आउट फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी क्लास लेक्चर। तो चलिए, तो आपने लिया नहीं क्योंकि अभी प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं किया, बट आई एम श्योर यू वुड हैव सीन दैट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सेडिमेंट्स हैं, ओशन के सेडिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद वी आर लुकिंग एट दिस इज द होल क्रस्ट एंड दिस इज व्हाट मेंटल। क्रस्ट एंड मेंटल दोनों का हिस्सा होता है ना, लिथोस्फीयर इज बोथ, lithosphere, and what is happening is magma is rising and this is the divergent plate boundary, as a result this mid oceanic ridge is being formed, समझ में आ गया, and this is being pushed aside। तो ये भी डालना पड़ जाएगा, do we understand? So what are we going to do? एक तो illustration इसमें मैप हो गया, one illustration would be map, other illustration would be diagram, and sea flow spreading opens the axial rift valley। Now someone will say कि सर ये axial क्या होता है, अरे बाबा एक एक्सिस है ना, सेंटर में एक्सिस है around which rifting is happening, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक्सियल वर्ड वहां से आ गया। राइजिंग एस्थेनोस्फीयर मेल्ट्स फॉर्मिंग माफिक मैग्मा, तो एस्थेनोस्फीयर है व्हिच इज पुश्ड अप। सर एस्थेनोस्फीयर या मेंटल, अरे एस्थेनोस्फीयर भी तो मेंटल ही है ना, मोल्टन मेंटल। सो एट प्लेसेस दैट विल आल्सो कम आउट, पूल्ड मैग्मा व्हेन इट रीचेस द सरफेस इट सॉलिडिफाइज इनटू क्रिस्टल ब्लॉक्स, ठीक है। तो यहां पर होगा, तो ये 3 नाम, रिमेंबर नाउ यू नो द लैंडफॉर्म्स, लैंड के तो पता चल गए। ओशन में आपको 3 नाम दे रहा हूं, सिर्फ वर्ड्स, वोकैबुलरी दे रहा हूं। कभी कभी वो होता है कि ओशन बॉटम पे व्हाट रॉक्स आ रहे हैं, तो आप बोलिए पिलो बसाल्ट, आपको पता है ना ओशन बॉटम बसाल्ट से बनता है, ठीक है, गैब्रो एंड डाइक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। सम रॉक्स व्हिच कम ऑन द सरफेस आर एक्सट्रूसिव,
Some rocks which are not on the surface, they stay inside, they are called intrusive. So जब बाहर आ जाता है उसको बसाल्ट बोलते हैं, बसाल्ट सी फ्लोर पर आ गया, बट अगर अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं, गैब्रो. डू वी गेट दैट? तो ये वर्ड्स आ गए आपके पास. इज एवरीवन ओके? ठीक है, देखिए अंदर वाला हिस्सा क्या है, गैब्रो, और ऊपर जो बाहर आ गया वो क्या है, बसाल्ट. इज एवरीवन ओके? तो ये हमने कहां पे देखा? बिकॉज आई गेव यू सम बेसिक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यू कैन यूज दैट. कैन वी ऐड टू दिस आवर डायग्राम बुक टुडे? एवरी डे कुछ नया लेकर आऊंगा. आई विल चैलेंज यू, आई विल अननेसेसरली बॉदर यू. अरे वो तो खत्म हो गया था सर, अब जगह नहीं बची, एक और पेज लगाओ. 3 पेजेस में बना रहे या नहीं बना रहे? दैट्स व्हाई आई सेड, यू नो, लाइक कीप अपडेटेड एंड दे विल बिलोंग टू यू फॉरएवर. तो यहाँ पर जोन ऑफ पार्शियल मेल्टिंग. अब बताओ यही डायग्राम कैन इट बी यूज्ड इन प्लेट टेक्टोनिक्स? देयर आल्सो इट कैन बी यूज्ड. ठीक है. अच्छा, एक चीज होती है ओशन बॉटम्स पर, इट हैज बीन सीन, यू नो, सच पाइप्स आर देयर, सच पाइप्स आर देयर. ठीक है, और इसमें से एक स्मोक आता रहता है. इनको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स. हाइड्रोथर्मल वेंट्स. Now very simple. Hydro means water, thermal means hot water, vent means opening. Job done. Can you see this? Figure भी बता रहा हूँ. Ocean के bottom पर, at the bottom of ocean, at some places, hydrothermal vents have been seen. यहाँ तो क्या हुआ everyone? What came out? Actual magma came out. Actual magma came out, but here magma has not come. But the water which is there, that has been heated by magma. So magma is still below the surface, but there is water in the rocks that has got heated. When water is heated, steam is there. Does it get pressurized? So it will come up. So जहां पर भी rock में fracture होगा, it will start coming up. Now water is coming up and it comes across and it touches salt. What will happen? Hot water and salt. So salt will dissolve. Okay. Which salt? So sodium chloride. Sodium chloride, calcium chloride, sulfur, whatever is there. Water is a solvent. It will dissolve. So this hot water dissolves minerals. When this water reaches the sea, minerals precipitate quickly. So वो क्या होगा? जैसे if you remember, मैंने कई बार ये example दिया है. At your home, you find that there is a tap. Yes or no? Tap gives water, and on the mouth of the tap, have you seen deposit starts happening, calcium carbonate? Does it happen or not when the water dries up? Now there is water which is coming, which has sediments in it, and those sediments, when they come in contact with this surface water, वो यहीं पर solidify होने लगते हैं. So what are these? These are solidified structures. ये दिखाई दे रहा है आपको? ये salt है जो solidify हो गया. Salt है जो solidify हो गया है, and from that, what is coming out? Black smoke. ये कुछ जगह पर white smokers भी होते हैं. White smoke. इनको क्या कहा जाता है? Hydrothermal vent. Can I say they are associated with glaciers? Oh sorry, volcanism. Can I say volcanic landforms are there? ठीक है. इसी पर short note आ गया. Problem. Short note if it comes. First of all, you should be able to draw them. Where are they found? Submarine. What do they carry? They carry a lot of chemicals, especially sulfur. Do we get that? याद है. They are hydrothermal. तो कितना हो सकता है? They are hydrothermal. तो ये कितना हो सकता है? यहाँ पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. 400 and above. ठीक है. सर हाउ रोमांस गैप फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन? नील कल भी बताया हमने. रोमांस गैप कुछ नहीं है, वो एक फॉल्ट लाइन है. रिफ्टिंग है. रिफ्टिंग क्या हमेशा वोल्केनो से ही होती है? रिफ्ट वैली बताया था ना, फॉल्टिंग. तो आप क्यों गलत कनेक्ट कर रहे हैं? कल आपको बताया ना, वो भी बना के दिखाया था, रिज बना के दिखाई थी दैट इट कैन गेट फॉल्टेड, ऐसे खिसक गए वो टेंशनल स्ट्रेसेस की वजह से. सो व्हाई वुड वी कनेक्ट देम विद वोल्केनो इरप्शन? तो कनेक्ट करना है जो हमने कल किया उससे हो. तो इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन हाइड्रोथर्मल वेंट, डू यू हैव समथिंग? बहुत गर्म होता है, केमिकल रिच होता है. विल देयर बी लाइफ और नॉट? Will there be life in such areas or these are dangerous areas? Sir, no, there will be no life. These are dangerous areas. So I want to tell everyone, hello, this is where life originated. You will be surprised that life originated here. You and I, we started here. तो जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन कह रहे हैं वो नशे में है. यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है भाई. Everyone, पहले जो आप लाइफ जानते हैं वो लाइफ ओशन के बॉटम पर आई. ओशन के बॉटम आर दे डार्क और नॉट? If they are dark, that means photosynthesis नहीं हो पाएगा. थर्मल रेजिस्टेंस तो छोड़ दो बच्चों, आपको तो 400 डिग्री सेल्सियस परेशान कर रहा है कि अभी मैं जल जाऊंगा उधर. मुझे क्या परेशान कर रहा है? मुझे एक फूड चेन परेशान कर रही है. दैट फॉर लाइफ टू सर्वाइव वी मस्ट हैव अ फूड चेन. फूड चेन बिगिंस विद द सन एंड सन इज नॉट रीचिंग these areas. I want to tell you, primitive organisms were not doing photosynthesis, they were doing chemosynthesis. Life originated at the bottom of oceans where sunlight was not penetrating, so the organisms which were living over there, these are primitive organisms and they came up with chemosynthesis. Some of them later on diverse. Remember Darwin, survival of the fittest. वो ये छोड़कर भी बाहर निकले. अच्छा, यहाँ से क्या दिक्कत है? Everyone. So everyone, you have a lottery of 1 crore rupees. Okay, 1 crore rupees you have with you. After that you decided I will never work, I will not earn anything. Will that 1 crore end one day or not? A smart person would try to use that 1 crore to generate more income. But if you do that, that's a problem.
So everyone, why is this hydrothermal vent erupting? Because there is magma, there is heat. If that magma heat shifts somewhere, what will happen to the hydrothermal vent? शरीर बंद हो जाएगा. बंद हो गया तो party is over. The energy is chemosynthesis, that is over, it will finish. So can I say they will die? And that's why Darwin says to survive they will modify. So some of them modified later on, some of them turned into photosynthetic ones ऊपर जाकर. जैसे I also want to tell you, भाई ये anaerobic condition है. Anaerobic means there is no oxygen also. So anaerobic hot soup of chemicals, that is where life originated. But today anaerobic hot soup of chemicals is dangerous for life. Do you understand? So we have come a long way. वो primitive life थी, लेकिन वही primitive life की वजह से आज की life आई है. Do you know in environment something called as pioneering community, pioneer communities? ये वो pioneers. अभी तो आपका 2 बार क्वेश्चन है यूपीएससी में lichens and like fungi, algae and all that. Mosses पे भी आया, yes, lichens, mosses. मैं कह रहा हूँ lichen, mosses से भी पहले अंदर ocean में, that is that. We'll be talking about all these things in environment classes, but I hope you got these 2 ideas. इन पे छोटा क्वेश्चन बनता है. I hope you will be able to explain science now. The overlap is with science, biology and geography. अच्छा, अब सर, but geography is about where, so where will we find them? Guess मारना है, नहीं तो लिख देना मिड ओशियनिक ridges के पास मिलता है. Yes or no? तो guess ही तो मारना है. Areas which are volcanically active have a probability of hydrothermal vents to be there. Probability, am I correct in my language? नहीं कह रहा हूँ वहीं पर. It is because of them that numerous sulfur reserves have been created at the ocean beds, which can be exploited through deep sea mining. Sentence, I am creating them. Answer बनाना है. That is what my question to all of you is. समझ में आ गया? तो अगर कहीं पर ये भी आता है तो घबराना नहीं है, छोड़ दो. इसको देखना है, समझा, छोड़ दिया कि हाँ यार ये मैं हैंडल कर सकता हूँ. सब लोग देख रहे हैं ये यहाँ पर क्या हुआ, मिड ओशियनिक रिज, ये ऐसे जा रही है, इधर जा रही है. एवरीवन, सो माइनिंग इज आल्सो डेंजरस. मधुकर ने आज पहली बार बताया. हाँ भाई, माइनिंग डेंजरस है. कौन कहा कि माइनिंग का मतलब आम के पेड़ से आम तोड़ना है? ठीक है, तो सर इसका मतलब तो माइनिंग डेंजरस है. बहुत डेंजरस है भाई. It's true. So there is an NCERT book. This boy is pulling the NCERT book. Shameless people. What will happen to the NCERT book? So it will tear apart. तो ये अलग हो गया. यहाँ पे मैग्मा बना, यहाँ से मैग्मा निकला. ये क्या बन गया? मिड ओशियनिक रिज. Is everyone okay? Situation 2. The Kaurav standing on this side, the Pandav standing on this side. Sir, but Kaurav were 100, Pandav were 5, sir. हाँ अभी बाकी सब गए हुए, 2-2 मिले आमने सामने हुए. टेंशन में. They are pulling. What will happen to the NCERT? Again the same result, sir. NCERT बीच में से फट जाएगी. True, everyone, tear apart. Now I want to add some more thing. Yes. This fellow is Bhim. And this fellow is some unknown Kaurav. Nothing. This fellow is Duryodhan. Yes, this is Nakul, Sahadev type. I'm sure you can. Arjun nahi lekar aa rahe. So do you know that Bhim and Duryodhan were like solid people when it came to bodies? Yes, sir. Sahadev had whatever is there. ठीक है, ये युधिष्ठिर और अर्जुन वाले लोग, I hope you understand. मैं दिखाना चाह रहा हूँ कुछ और. So tell me now, can I say that the forces, this force is very high, this force is very high, ये force थोड़ी सी less होगी. So will the book tear? Will the book tear in the center? Yes, it will tear in the center. But will there be a tendency for the book to be torn apart here also? ये वाला part इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा. Will the book later on be like this? Yes or no? All the doing of Bhim and Duryodhan. So यहाँ से तो हुआ ही हुआ, यहाँ से तो हुआ, laterally भी shift हो गया. Because forces that are pulling are not uniform. Forces can be different or not. So do you understand what are fault zones? ये transform fracture zones क्या हुए? तो सब बराबर नहीं खींचा. तो ये जो ऐसे ridge आनी चाहिए थी, the ridge should have been like that. We find that here the ridge is here, 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 and the gap is called fault. समझ में आ गया faulting कैसे हुआ? ठीक है, नीली fault समझ में आ गया आपको? सर कैसे हो सकता है fault? ऐसे हो सकता है fault, है ना? अच्छा, यहाँ पर क्या लिख दिया? Hotspot track. Hotspot क्या होते हैं? What are hotspots? There are some places from which magma is constantly coming out. And if the plate moves on this, so what will happen? Magma will also we see a streak of that or not? है ना, hotspot volcano तो वो fixed होता है, and the plate is moving on that. If the plate is moving on that, so will the plate have that magma as a series of this? Hawaii Islands, if you have heard of that. yes or no? हमारे पास है कौन सा Reunion Island. So अगर hotspot के ऊपर से एक plate गई है, so will the hotspot, wherever the hotspot erupted, because the plate kept on moving,
विल वी सी इट एज अ ट्रैक ऑफ हॉटस्पॉट? यस और नो? और यहाँ पे शैलो हो जाएगा तो मैंने आपको बोला था सेकेंडरी रिज विल बी क्रिएटेड, हो सकता है तो वोल्केनो से सेकेंडरी रिज विल बी क्रिएटेड। देन वी सेड हाँ सर इससे बना अंगोला बेसिन और इधर क्या बना था, अबुलहास बेसिन, डू यू रिमेंबर दैट? अब यहाँ पे दो बेसिन दिख रहे हैं, ब्राजील बेसिन होगा, ये अर्जेंटीना बेसिन होगा। सर आपने तो पूरा ब्राजील लिखवाया, अरे अब देख लो ना, फ्रैक्चर जोन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, इसलिए हो गया। एवरीवन ओके? Did we understand what is fracture? What is Romance fracture? So Romance वहाँ पे कट भी हो गया है, that is there, that is why it has been created. Everyone with me on this? Clear है? चलिए अच्छी बात है। हॉटस्पॉट भी देखेंगे कैसा होता है हॉटस्पॉट। मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम, कहाँ से आ रहा है? कोर मेंटल बाउंड्री से आता है मैग्मा, स्ट्रेट अवे लाइक अ पाइपलाइन, कंड्यूट की तरह से है। दिस कम्स एंड इरप्ट्स ऑन द सरफेस, कम्स एंड इरप्ट्स ऑन द सरफेस। ट्रू। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल प्लूम। ये भी जीएस में पूछा है ना, व्हाट आर मेंटल प्लूम्स? जीएस पीवाईक्यू। ये डायग्राम बनाना आना चाहिए सबको, होमवर्क मिल गया। क्या है डायग्राम? बन गया मेंटल प्लूम। अब पहले ये यहां पर आया था, but now what happened, the plate is moving that way, everyone, the plate is moving that way. Can you see the plate is moving that way? So first Kauai was on top, then Oahu was on top, then Molokai was on top, then Maui was on top, and now Hawaii is on top. The plate is moving away. तो एक पूरी ट्रेल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? Will there be a trail of island? The one which is farthest, can I say, is the oldest island or first to be created, and one which is active is the youngest, अभी चल रहा है। ठीक है, ये तो सीक्वेंस समझ में आ गया। तो can I say wherever there is a hotspot, because plates are moving on it, hotspot तो अपनी जगह पे फिक्स है, but plates are moving on it, so on the plate we see a row of islands or row of volcanoes. The old ones are extinct because there is no longer anything beneath them, the new one is active. Is everyone okay? So if there are multiple hotspots in the world, तो सबकी अपनी एक सीरीज होगी, आप देख सकते हैं सबकी सीरीज है। हवाई की ये है, ठीक है, मैकडोनल्ड हॉटस्पॉट, समोआ हॉटस्पॉट, लुईविले, सर ये तो बहुत सारे। ओह यस देयर आर मेनी। सर मैं तो मर जाऊंगा, मरना मत, गैलापागोस याद रख लो, दिस इज वेयर चार्ल्स डार्विन डिड वर्क। हवाई याद कर लो, नंबर 2, द वन जो हमें इंपैक्ट किया था, रीयूनियन याद कर सकते हो, रिमेंबर द रिज एक्सटेंड्स फ्रॉम आइसलैंड टू बोवे, याद रहेगा, आइसलैंड बोवे। ट्रिस्तान दा कूना लिखा था, सेंट हेलेना हो गया। बर्मुडा ट्रायंगल आपने सुना है, बर्मुडा इज आल्सो देयर। एंड will it come only on the ocean? No, it can be on land. Have you heard of Yellowstone National Park? Very famous. Yes, Afar Depression, ये इथियोपिया में। So दो लैंड के बता दिए। Everyone, would you want to draw the map at home? And how many will you show? You can see along the Atlantic. I have identified 4. In India, I have seen Indian Ocean only Reunion, and in Pacific, Galapagos and Hawaii. On land, one is the Yellowstone, and this is Afar. तो मैं बताना चाहता हूँ, अफार की वजह से अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी। And Yellowstone is a famous national park, जहां पर लोग जियोथर्मल एनर्जी के लिए जाते हैं। यहीं पर आपने एक फेमस गीजर सुना होगा, ओल्ड फेथफुल, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। वर्क डूइंग द होमवर्क, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मार्क्स लीजिए। हिमांशु इज सेइंग कैन इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू वोल्केनो एट एनी प्लेस इवन ऑन लैंड? हिमांशु, डू यू हैव द आंसर? ऑन लैंड और इट डजंट मैटर। आपके पास तो मैग्मा इज कमिंग अप ऑन द सरफेस। अब ऊपर से कौन सी प्लेट निकली? इफ द प्लेट वाज ओशियनिक प्लेट, इट विल क्रिएट मैग्मा ऑन द ओशियन फ्लोर। इफ द प्लेट वाज कॉन्टिनेंटल प्लेट, it will create magma on the continental. So India is an example, no? When Indian plate passed over reunion, we got a lot of magma. That is our Deccan lava plateau. True or not? So you समझ लो कि नीचे से तो आ ही रहा है, नीचे से कीचड़ आ रहा है. It is like gober on the road and you stepped on it. चिपक तो जाएगा ही. True or not? So there is constant eruption happening. Whosoever will pass over it. If oceanic plate will pass over it, magma will come out. And if that magma is enough, it comes on the water surface, it will turn into an island. If the land surface terrestrial plate passes on it, तभी आएगा. एग्जांपल आपको दे दिए, दोनों एग्जांपल दिए, लैंड का भी दिया, वो भी दिया, एक अच्छा वो आपके लिए बनाया, ठीक है? तो कितना सुंदर इन्होंने लिखा है, टैटू ओवरराइडिंग प्लेट्स, इट्स लाइक अ टैटू ऑन द प्लेट। प्लेट जा रही है, प्लेट के ऊपर 1 2 3 4 ये टैटूज बने हुए। डू वी गेट दैट? कहां से आता है? लोअर मेंटल से आता है। मैं तो कह रहा हूं कोर मेंटल बॉडी बाउंड्री, कोर मेंटल बाउंड्री। देखो एक डिफरेंस दिखा रहा हूं अभी सबको। नॉर्मली एंड अ वोल्केनो कम्स फ्रॉम वेयर? एस्थेनोस्फीयर। नॉर्मली क्या ऊपर आता है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इज व्हाट? आउटर मेंटल। Normal volcanoes are always outer mantle. Hotspot volcano is core mantle boundary. प्रियंक is saying 100 किलोमीटर। प्रियंक एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो जो है वो यहां से आ रहा है, वो कहीं से भी आ सकता है। तीन तरह का होता है, आपको बताया था ना, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस और डीप फोकस। रिमेंबर, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस वो यहां पर होता है। द सिड पार्ट इज हियर। वेकअप सिड आपने मूवी देखी, वो यहां पर। बट ये वाला स्पेशल है, ये वेकअप सिड नहीं है, शेकअप सिड है। ट्रू। यहां पर तो कहता रहता है मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। नीचे वाला स्पेशल। Everyone, did you understand hotspot volcano? Did you understand island creation? And this diagram should be there. Can it be used in geomorphology? Yes, sir. Can it be used in oceanography? Yes, sir. Can it be used standalone? Yes.
with these hotspots, can I expect hydrothermal vents? Yes. Because of these, can I expect cracking, faulting to happen? तो अभी जैसे नीलनी ने पूछा कि सर क्या वोल्केनो से वो रोमेंस डीप बना है? वोल्केनो can be an instrument which cause that stress. हो सकता है ना? हो सकता है, बट उसी से बना है जरूरी नहीं. Faulting can be because of multiple processes. ठीक है? So क्लास में सब समझ में आता है. Everyone will say, okay, I understood, and I know that you are understanding. But the test will come when you draw them. Then new doubts will come. New doubts will come. अच्छा ये तो सोचा नहीं था. Okay, let me ask sir about this. ठीक है? Famous island है यार, अजोर आइलैंड, कैनेरी आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड, सब के सब इतने काम की चीजें हमारे लिए ये काम कर जाते हैं. Everyone okay with this? I hope I made myself clear. Important things when I'm talking about ocean bottom relief, that is there. अब मुझे एक बात बताओ. I've been talking about all these things. Would any of you now say, sir, this is why Atlantic Ocean is the busiest ocean? ऐसा तो नहीं कहोगे अचानक. So you can see Atlantic Ocean is the busiest ocean. नहीं भाई, this has got nothing to do with that. This is about the bottom. अच्छा bottom में इतना ड्रामा है and I want to lay submarine pipelines. So मैं ध्यान रखूंगा ना कहाँ पर है, कैसा होगा. Preeti saying origin places of hotspot volcanoes are fixed. So Preeti will do that in geomorphology. Yes, there are fixed locations. हम ऊपर से जो है the lithosphere keeps on moving around them, but these are fixed conduits. Why they are there, where they are, अभी हमें नहीं पता है. We haven't been able to find that out, but we've been able to identify them because उन पे volcano आ जाता है. Get that? हॉटस्पॉट कैसे एक के बाद एक आएगा वो भी दिखाने के लिए कि पहले यहाँ पर था, फिर ये प्लेट शिफ्ट करके पॉइंट ए शिफ्टेड हियर, नाउ इट इज पॉइंट बी एंड दे आर ऑल मूविंग. पॉइंट ए, पॉइंट बी, वेयर इज इट नाउ? पॉइंट सी. यू कैन सी दिस इज फिक्स. व्हाट इज मूविंग? 1/3 प्लेट, 2/3 प्लेट, फुल प्लेट. वोल्केनो परफोरेट द ओवरराइडिंग प्लेट. परफोरेट मतलब उसमें छेद करके निकल आएगा. परफोरेट इज मेक अ होल. बट इफ द प्लेट इज मूविंग, so the first hole was created here but you moved away from that, so the second hole is created. Now this also moved away, so third hole is created. Is everyone okay? अच्छा कल किसी ने पूछा सर सी माउंट कैसे बनता है? भाई वोल्केनोस गोज एक्सटिंक्ट. जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये जो पुराना वाला तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. सब्सिडेंस हो सकता है, उससे रिवर्ट बन सकता है, उससे एबिसल हिल बन सकता है, सी माउंट बन सकता है, पॉसिबल. इरोजन हो रहा है उसका. And can this cause rifting to happen wherever it is there? Can it cause rifting or not? So rift valley भी बन सकती है. So this was about hotspots. Please pay attention to that and practice. Question अगर आता है discuss mid Atlantic ridge. Previous year question लेकर आया हूँ. Its origin में geomorphology लाएंगे. Yes. Extent क्या है? कहाँ से कहाँ तक shape वो बता देंगे. और relief में क्या है? Relief में it is 4000 meter. At some places it is high enough to show up as islands. At places it is low. Yes. Wherever it is high, it is like that. तो ये उसका रिलीफ है. और आप इसमें यहाँ डालिए फ्रैक्चर भी है कई जगह पर. सो नॉर्मली तो वो ऐसा बनी है. नॉर्मली द रिफ्ट इज लाइक दिस, बट इट हैज गॉट फ्रैक्चर्ड एट मेनी प्लेसेस. प्रेजेंट अ कंसाइज अकाउंट ऑफ bottom relief of Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. Previous year question. Explain and illustrate the submarine relief of. So first is explain means why and how. Illustrate का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ. Illustrate का मतलब डायग्राम. So a student came to me, sir, my teacher told me, geography optional teacher told me that you don't need to draw too many diagrams and maps. They are fooling you when they say that you have to draw diagrams and maps. So I asked him, ask your teacher, can he draw the map? है ना? Can he draw the map? बोले सर वो तो क्लास में कभी बनाते नहीं. तो पूछो तो सही. जब बनाना नहीं आएगा तो कुछ तो बोलेगा ना यार. True or not? And it's ridiculous, a student coming to me and saying, like teacher saying कि इतना मैप की जरूरत नहीं होती. Geography का टीचर बोल रहा है. भाई एक बार तो मुझे समझ में आता है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर बोल रहा है हर जगह मैप मत बनाओ. मेक सेंस. सोशियोलॉजी टीचर सेज डजंट मेक. ज्योग्राफी ऑप्शनल बोल रहा है मैप डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं होती, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख देना. इनका पूछो तो सही, सर को आता है नहीं आता. अब ड्रॉ अ हिप्सोग्राफिक कर्व क्या करें, लिख दिया यार. इलस्ट्रेट लिख के दे रहा है, वो लिख कर दे रहा है. दे वेरी वेरी क्लियर, दे आर राइटिंग इट. नहीं उसके बिना भी नंबर देगा बिल्कुल देगा. पास होने वाले थोड़ी देगा. तुम जाके अगले बार फिर सर के पास बैठना, एग्जाम की मैयत निकालेंगे हम फिर सारे मिलके. रोना होगा हम लोग का, अरे यार यूपीएससी मुझे समझ नहीं पा रहा है. तुम यूपीएससी को नहीं समझ पा रहे हो चाचा. And I clearly believe, the subject, every subject has its rules. Yes or no? That's what we are talking about. Use that. तो मेरा आपको सजेशन है, इसलिए डायग्राम बुक भी बनाता हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमेशा दिखा के रखता हूँ कि भाई ये आ रहे हैं. This is going to happen. This will come in the exam. Are you prepared for that? कई बार क्या होता है, we don't even show the student the exam what is coming. जो मैं हूँ, मैं ही मैं. So there is very clear illustration पे diagrams पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. You will have to do that. और सुनिए ना, कितना अच्छा उसने खत्म किया. And comment on the permanency. Hypsographic curve तो बन गया था आपका, ऐसे बना था ना कल hypsographic curve. Did we do this? ऐसा किया था. वो कह रहे कमेंट ऑन द परमानेंसी. परमानेंसी मींस is this hypsographic curve going to be like this? So my answer is nothing is permanent. In fact 100% oceans था.
It used to be 100% ocean. Now it has become 70% ocean, 30% land. With time, what will happen? The land will keep on increasing, the ocean will keep on reducing. बताएंगे कि नहीं बताएंगे? Will we also say that there is a huge amount of dynamism on account of endo and exo? अब सोचिए कितना अच्छी बात है, such a good thing that the examiner has asked us question in two parts. And there are students, moment they say hypsographic curve, सर ने कराया था आ गया और hypsographic curve लिख कर आ जाए. भाई देखिए, draw a hypsographic curve to represent major physiographic units, वो कर देंगे हम. कर दिया. I will also write something about them, that this is continental shelf is 7.5%, this is 8.5%, this is around 80% plus, this is 1.5%, this is how it is there. The deepest place is Mariana Trench, and this is something if I want to. But second part भी तो है, comment on their permanency. And now people are wondering, ये क्या comment करना? Comment मतलब ये है, for very long it was believed that landforms are where they are, permanent idea. Yes sir, ये मैंने आपको geomorphology में सिखाया था. But with the idea of uniformitarianism, that no landform is permanent because constantly the present day forces were acting in the past also. Uniformitarianism. So present day, endogenetic and exogenetic, if they are modifying the landforms today, why would they not modify in the past? So the Earth's lithosphere, including the ocean bottoms, have been constantly evolving and changing. So my comment is not permanent. Nothing is permanent. And then I will give certain things. Say for example, मैं कहना चाहूँगा, I would want to end this, that Atlantic Ocean keeps on expanding, so new lithosphere is created, while Pacific Ocean is subducting and shrinking. So a lot of lithosphere, terrestrial lithosphere, is getting destroyed. अगर ये part है, I've always maintained, let me not impress you with what I know. Let me first tell you what is correct. Do we have answer for both the parts or not? If this question comes for 150 or 200 words, can you draw the hypsographic curve? Can you write one sentence each about the key physiographic units? What are the physiographic units of ocean? Shelf, slope, trench, basin. लिख सकते हैं. Key वाली, macro वाली बात करें. Either we will not talk about shoal, here we will not talk about hot spots. No, key ones. अब किसी ने कहा कॉन्टिनेंटल राइज बेसिन, अब अनिर्बान पूछ रहा है, एक बात बताइए एवरीवन, वी मेड हिप्सोग्राफिक कर्व यस्टरडे, कहीं राइज और बेसिन का कुछ चांस दिख रहा था कॉन्टिनेंटल राइज का, सॉरी ओशन राइज का? नहीं था. तो जबरदस्ती पहले छोटू लेकर आएंगे. छोटू किस लिए ला रहे हैं? टू इंप्रेस द एग्जामिनर. मुझे तो छोटू भी पता है. अब कर तो दिया इंप्रेस, दिखाओ फिर उसको. शो मी, दिखाओ कहां है कॉन्टिनेंटल राइज. वो तो दिख नहीं रहा था हमको, तो उसमें दिख नहीं रहा था. तो इसे क्या कहते हैं? आ बैल मुझे मार, उड़ता तीर ले लिया. ये सुनो, क्यों लेना है भाई? यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ द आंसर दैट डे. तो इतना मतलब ऐसे सीना 56 इंच का मत दिखाओ कि सर वो मैं ओशन राइज भी लिख रहा था, इसमें दिखा नहीं पाया. ठीक है, ये बहुत अच्छा लिखा है मैंने. प्रैक्टिस. अभी यू आर नॉट टीचर्स, नो, आई एम एन इवैल्यूएटर. तो अपने में भी दिखने लगता है स्पेलिंग मिस्टेक भी. प्लीज गेट दैट. द पर्सन हु इज गोइंग टू रीड यू, आपने खुशी ने कहा अभी देखा, खुशी आपने अभी देखा, मेरी तो नजर से जाएगा, मुझे आएगा. मेरे फिल्टर्स वैसे हैं, कहने से एग्जामिनर के फिल्टर भी वैसे हैं. ट्रू, एग्जामिनर फिल्टर्स आर आल्सो, बिकॉज़ दैट्स आवर जॉब, नो. बी केयरफुल. अपनी स्पेलिंग्स पे ध्यान रखिए, अपने डायग्राम्स पे ध्यान रखिए. कल मैंने डायग्राम टोक दिया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता वो डायग्राम गलत है. आज मैंने कंक्लूजन जैसे उसको देखा, मैंने कहा कंक्लूजन कितना गलत है यार. सो रिमेंबर, वी आर बाय द वर्च्यू ऑफ आवर जॉब, वी आर लुकिंग एट फॉल्ट्स. हम फॉल्ट्स देखेंगे एंड वी विल बी एबल टू हाईलाइट देम. एंड देयर विल बी पीपल हु रियली आर नॉट सीरियस एस्पिरेंट्स. भाई इससे बच के रहियो, ये तो कमी बताता है. अच्छा, टीचर का काम होता है यार कमी बताना. आई एम तो सरप्राइज व्हिच जनरेशन आई एम लिविंग इन. वो टीचर भी, भाई उसके पास मत चले जाना, वो कमी बताएगा. क्यों चचा, ऐसा क्या गलत पढ़ा के बैठे हो, इतना क्या डर लग रहा है तुमको? What is wrong, and if there is something wrong, even you would call it wrong. What's wrong with it? True or not? और स्टूडेंट भी बहुत मजेदार है. एक ने कहा ये ठीक नहीं है, ये तो टीचर भी ठीक नहीं, दूसरे से बात करता हूँ, हाँ लेकिन थोड़ा तो ठीक है. तीसरा, फाइनली जब तक कोई ये नहीं कहेगा नॉट दैट बैड, सर आप ही तो हो, मैं ढूंढ रहा था आपको, आप ही तो सर मोटिवेटेड रखते हो मुझे सर, आप मेरे दिन को दिन कहते हो, मेरी रात को भी दिन कहते हो, जो कह देते हो सर आप मुझसे शादी कर लो. यस, नॉनसेंस. ट्रू. सो ऐसा मत करो. वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए. हैव यू हर्ड ऑफ दैट? A person who can find your faults, who takes the pain out of care to find out what is not correct, is actually a blessing in disguise. But आज की डेट में तो निंदक जेल में रखिए. निंदक एंटी नेशनल टीचर, निंदक एंटी नेशनल स्टूडेंट, ये जितने भी निंदक हैं सबको नींद में डाल दो. दे डोंट नो प्रॉब्लम. निंदक नियरे राखिए का मतलब है निंदक इसको नींद में रखिए. चलिए पैसिफिक क्वेश्चन में आ जाए. एंड लेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिकल इन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचिंग. निंदक से बच के रहिए. लोरी गा के सुना दो, जो सुनना चाहता हो सुना दो. Pacific Ocean, key points. This ocean is the largest and deepest. Northern Pacific is the deepest. The average depth is 5 to 6,000 meter. It has its associated seas. It covers about 1/3 of Earth. It is roughly triangular.
with apex in the north in Bering Strait. It has around 20,000 islands, highest number of islands. Central Pacific represents the largest number of islands. Most of them are volcanic and coral. And if you remember from my basic classes, we had talked about Oceania. Yes or no? Oceania में we talked about the three group of islands. Melanesia, yes, Polynesia और Micronesia. ऐसा था ना? Island groups, Melanesia, Micronesia, Polynesia. The islands studied close to the continent, जो continent के पास ही है, continent से जुड़े हुए थे, but water has come, that is continental. Submarine canyons are more abundantly found along the straight coast with than highly indented coast. सर ये समझ में नहीं आया, भाई स्टेटमेंट है, सबमरीन कोस्ट आर मोर अबंडेंटली फाउंड इन स्ट्रेट कोस्ट देन हाईली इंडेंटेड कोस्ट. बहुत ऐसा ऊपर नीचे वाला है कोस्ट, तो उस पर जो है इतना ज्यादा सबमरीन कैनियंस नहीं दिख रहे हैं. जो फ्लैट होता है वहां पे फ्लो करना एवलांचेस आर इजी, सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. ठीक है, ऐसी जो कोस्ट लाइन है इस पे बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, स्ट्रेट वाले पे मिल रहे हैं. क्यों मिल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट आ गया, छोड़ भी सकते हैं. इट इज 14,880 किलोमीटर नॉर्थ साउथ. ठीक है, इतना लंबा याद करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, फैक्ट है. देयर आर आल्सो लार्ज नंबर ऑफ सी माउंट्स, गेट, पैरेलल एंड आर्क्यूएट आइलैंड आर्क्स. ठीक है, हमें पता है. The southwest portion of the Pacific is marked by variety of island marginal seas. ठीक है, deepest of Mariana, Tonga, Kuril, Philippines, Japan. The southeast Pacific has a broad submarine ridge. आपको बताया था southeast ridge है, कल दिखाया था. The part of the Pacific is conspicuous by absence of marginal seas. वहाँ बहुत marginal seas नहीं है. कल डायग्राम भी बनाया था हम लोगों ने. Did we make this diagram? है ना? अब आप देखिए कहाँ पर wide है continental shelf. Can you see continental shelf is wide? Where is it wide? मुझे लगता है ये बहुत काम की चीज है. बल्कि ऑस्ट्रेलिया हटाता हूँ. This whole area एक बहुत important area है where it is wide. Can I say Southeast Asia? इसीलिए मलेशिया, इंडोनेशिया have got oil in them. मलेशिया, इंडोनेशिया से ऑयल आता है. Do you know which is the largest coral reef in the world? Great Barrier Reef. Can you understand coral reef? यहीं पर है coral triangle, तो यहाँ पे corals बहुत सारे होंगे. Corals होंगे तो बहुत सारे island होंगे ना? In Melanesia, Polynesia. ठीक है. But convergent boundary भी है. तो कल आपने अपने वो बनाए. What did you make? Your trenches. Exact location चाहिए. Aleutian, Kuril, जापान, बोनिन, मरियाना ट्रेंच, मिंदानाओ ट्रेंच. मिंदानाओ को फिलीपाइंस ट्रेंच भी कहेंगे. यस, इधर क्या है? टोंगा, कार्माडेक, अटकामा ट्रेंच. साउथ ईस्ट में क्या है? प्लेटू. साउथ ईस्ट में प्लेटू. सर व्हाई ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्जिन वाइडन्स? भाई ईस्टर्न साइड पे वाइड है क्योंकि यहाँ पर आपके पास सबमरीन रिलीफ है. इधर क्या दिक्कत है? फिर आप ये भी तो पूछ सकते हैं सर व्हाई दिस इज वाइड. ये तो रियलिटी है, ये रियलिटी है. दैट मींस व्हाट इज देयर? व्हाट इज दिस? ये यहाँ का राइज एंड रिज, दैट इज व्हाट वी आर हैविंग. सो ये उधर होने वाला है. This is showing wide continental shelf. ठीक है, कहां पर नहीं होती है? कहां पर नहीं होती है? जहां कन्वर्जेंस हो रही है. So that means this is a plate, this is a plate, and they are converging. जहां पे कन्वर्ज कर रहे हैं, where they are converging, what will be there? उधर ट्रेंच हो गया तो ट्रेंच हो गया. So can I say this plate is having a wide continental shelf? क्या दिक्कत है? भैया पूछा सर यहाँ पे क्यों? अरे भाई कुछ एरियाज में सबमर्ज हो जाता है, continental shelf is wider. Yes or no? So हमें पता करना है where continental shelf is wider. So these are the areas where continental shelf is wider. Simple, इतनी सी बात करना है. सो एक वाइड, दूसरा वाइड, दो जोन ऑफ वाइड, टू जोन्स ऑफ वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया. नैरो कहां पर हो जाएगी एवरीवन? कैन यू सी नैरो? कैन यू सी नैरो? यहां पर ये उसका एज हो जाएगा, एक्चुअली एज हो जाएगा. दिस विल बी द एज. ये क्या है? प्लेटू. सर ये प्लेटू कैसे बना? अरे वी हैड अ सिमिलर प्लेटू कॉल्ड टेलीग्राफिक प्लेटू. कहां पर था? वेयर वाज टेलीग्राफिक प्लेटू? सर वो अटलांटिक में था. तो पैसिफिक में भी प्लेटू. ओह, व्हाट इज प्लेटू? द मैग्मा केम आउट इंस्टेड ऑफ रिज, इट जस्ट स्प्रेड आउट. ये हो गया. अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों वाइड है? फिर बता रहा हूँ बच्चे, वहां की कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होगी बिकॉज नीचे से मैग्मा कमिंग आउट. सो एल्बेट्रोस प्लेटू, साउथ ईस्ट पैसिफिक प्लेटू, एंड चिली के पास जो रिज है वो चिली रिज है. So they don't have a central ridge. They don't have a central ridge. That is not there. So center में फिर क्या है? If there is no ridge to divide, that means there must be a basin. What is that basin called? Central Pacific Basin. Do we get that? ये तो आसान हो गया. East Pacific Basin, Central Pacific, East Pacific Basin. और यहाँ पर क्या हो गया? छोटा सा ये बेसिन है बीच में, अटकामा ट्रेंच, and we can all this also. If you need it, that's okay. But मेरे पास तो बहुत सारा चीज़ देखो, छोटा छोटा पड़ोसी के नाम पे होता है ना. इतना सा तस्मान बेसिन रख दिया. ठीक है, साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, ये सेंट्रल है, इसको ईस्ट कर दिया, इसको साउथ वेस्ट कर दिया. कैसे ना? इसको साउथ ईस्ट कर लेना. हर एक की तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है. अब मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ यहाँ पर. ऑयल, ऑयल, इस सारा एरिया में ऑयल रिजर्व्स है. ऑस्ट्रेलिया के भी ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर. कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एरिया ऑफ मरीन ट्रांसग्रेशन दैट इज देयर. यहाँ पर ऑयल नहीं है बिकॉज दीज आर प्लेटूज. ये क्या है? सबमरीन रिज है. Whereas this is what continental shelf. Do we understand? So if the question comes, which side of Pacific Ocean have wider continental shelf? पहला चीज,
we will say that on the periphery of Pacific Ocean there is convergence happening, so we have trenches. Everyone थोड़ा सा ध्यान देंगे, if you are smart, everyone please pay attention. Can I say actually ये line boundary line है, तो यानी प्लेट तो इधर है. Which plate? Eurasian plate. True or not? So Eurasian plate has got a wide continental shelf, and after that what will come? Slope will come, and after slope what will come? Trench will come. Can you appreciate that? Western side has a wide shelf, after that slope comes, and after that what comes? Trench. ऐसे इसीलिए बना ना trench. And what is this? This is Pacific plate. Can you appreciate this? तो ये सारा प्लेट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वेरी वाइड शेल्फ, वेरी गुड, एंड आफ्टर दैट स्लोप विल कम एंड ट्रेंच विल कम. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी हो रहा है. और कुछ लोगों ने सुना होगा, सम ऑफ यू वुड हैव हर्ड दैट इसको रिसेंटली द साइंटिस्ट आर सेइंग ये एक सेपरेट प्लेट है. इसको क्या कहा गया? जीलैंडिया प्लेट. अब सही गलत तो पता नहीं, बट ये बात चल रही है. Whose job? Geologist job. How do they find out? Well, there must be cracks. They would be seeing some fractures. They would be seeing some tectonic activity. That is why they are saying separate है. अब separate है या नहीं है, मैं इस सबको erase कर रहा हूँ. Let me erase everything. Can I see? ये मुझे बहुत clear है कि there are trenches on the Pacific plate. There are trenches on the Pacific plate boundary. But if we look at the Eurasian plate, if we look at the Australian plate, its eastern margin has wider shelf. Wide है? Can I say wide? काफी wide है यार. This is the shelf, fairly wide. और यहाँ पे तो very wide. ऑस्ट्रेलिया का भी इधर वाइड है. आई एम नॉट बॉदर्ड वेदर दिस इज जीलैंडिया प्लेट और नॉट. अभी तक तो मुझे ये पता है वाइड. इधर क्या है कंपैरेटिवली? नैरो 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 नैरो. बट सर ये तो वाइड है बेटा, ये तो ये शेल्फ नहीं है ना. व्हाट आर दीस? ये तो रिज है ना, रिज एंड प्लेटो सिस्टम. दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड द सीवर्ड साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट. दिस इज नॉट कॉन्टिनेंटल मार्जिन. ये तो ओशन में से आया है बस. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो व्हिच साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन कैन वी सी वाइडर शेल्फ्स? अब तो दिखाई दे रहा है सर ऑन द वेस्टर्न साइड along the continent of Asia and this thing, whereas on the American side the continental shelves are narrow. क्यों narrow हैं? लेकर आए. Generally on the coast where mountains are there, plateaus are there, the continental shelves are narrow. Rule हो गया. There is a tendency of plate going down. सर यहाँ ट्रेंड है, यहाँ क्यों नहीं है? तो एक्सेप्शन है. यहाँ पे एक प्लेट है 1D फूका, वो पूरी प्लेट कंज्यूम हो गई, वो थोड़ी सी बची हुई, लिटिल बिट इज लेफ्ट. तो सब कुछ हो चुका है. तो जियोमॉर्फोलॉजी में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो. एवरीवन क्लियर की डायग्राम कल बना दिया था, इसलिए आई एम नॉट मेकिंग इट. आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर इन दिस. बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक, अगर आपको ऐसा लग रहा है फिर भी सर ने मुझे लिखवाया नहीं, मैं जान दे दूंगा. तो पैसिफिक बेरिंग स्ट्रेट इन नॉर्थ टू केप आदरे इन साउथ एक्सटेंड करता है. इट इज वेरी यूनिक. दीज आर द डायमेंशंस. पहला मैंने क्या कहा था? डायमेंशन बताना है, शेप बताना है. सेकंड क्या बताना है? द मेजर रिलीफ, मैक्रो रिलीफ. सो वी हैव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट इंडिया, एशिया में क्या हो गया? ब्रॉड हो गया. On this are situated various islands भी हैं इस पर. Yes, on the edge of this what is there? There are trenches. The average width is 100. However, along the west coast of USA ये narrow हो जाता है. Is everyone okay? North में आपने देखा बेरिंग सी, ओखोट्स, वहां पर वाइड है, ऑयल भी है. फिर रिज में आते हैं, does not have a central ridge. तो फिर कहाँ है? एल्बेट्रोस प्लेटू. नीचे देखा था कोकोस रिज, छोटे मोटे रिज है, अगर आपको याद करना हो ठीक है, नहीं तो वेरी सिंपल, यू जस्ट रिमेंबर 1 2 3. साउथ ईस्ट पैसिफिक एंड चिली रिज, चिली के पास, एंड दिस इज एल्बेट्रोस प्लेटू, ऑलमोस्ट एट इक्वेटर. हॉटस्पॉट वगैरह हमने कर लिया. हॉटस्पॉट का एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पर, बिकॉज देयर आर 20,000 आइलैंड्स. सो ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो वी गॉट कोरल आइलैंड्स. एवरीवन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ वी गॉट कोरल आइलैंड. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी हॉटस्पॉट चेन. हवाई चेन इज वन, एम्परर सी माउंट इज अनदर वन, मिडवे आइलैंड इज अनदर वन. ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं. सी माउंट्स ओरिजिनेट अवे फ्रॉम हॉटस्पॉट, एज चेंजेस मार्क्स द डायरेक्शन ऑफ ओवरराइडिंग. ये मैंने डिस्कस कर लिया, तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. वहां पर 32 द्वीप हैं सर, उसमें तो 29 लिखा हुआ था. जो मान लो यार, आपको कुछ याद रखने. एल्यूशियन ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, फिलिपाइन ट्रेंच, नीरो की जगह नीरो ट्रेंच इज आल्सो नोन एज मरियाना ट्रेंच. ठीक है, टोंगा, परमाडेक एंड पेरू चिली. हैव आई शोन देम आल्सो? ठीक है. अब ट्रेंच में एक डीप भी है. बार्थोलोमी डीप इज लोकेटेड नियर एंटाफोगास्टा सिटी. ना तो तुम्हें एंटाफोगास्टा पता है कि इट इज नोन फॉर कॉपर डिपॉजिट, वो मुझे पता है. ना तुम्हें बार्थोलोमी पता है, तो इसको क्या करेंगे? स्किम, स्कैन, फॉरगेट, कोई दिक्कत नहीं. बट एक वर्ड आपके दिमाग में आ गया, हाँ, एंडीज कोस्ट है, ये होना चाहिए. इज एवरीवन ओके? पैसिफिक खत्म. बेसिन, एल्यूशियन बेसिन, फिजी बेसिन, ये भी हमने कर लिया. मार्जिनल सीज, मार्जिनल सी नॉर्थ में ज्यादा है. सो व्हिच आई हैव ड्रॉन फॉर पैसिफिक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इसीलिए मैंने अपना डायग्राम दिया आपको. मार्जिनल सी इन पैसिफिक आर मोस्टली लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड ऑन द वेस्टर्न साइड. सर वो तो देखे नहीं हमने. अरे सब तो यहीं पर है, आप देखिए, यही तो है. बेरिंग सी, ओखोट्स सी, जापान सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फ्लोरेस सुलू सी, यस ऑल दो सीज, कोरल सी, सब कुछ इधर ही. तस्मान सी इधर बहुत कम है, इधर बहुत कम है. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, एंड एनीवन हु डन वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मी, यू वुड हैव आइडेंटिफाइड दैट.
ठीक है, स्पेसिफिक कर लेंगे, ये डायग्राम होना चाहिए आपके पास। एंड अ बिट ऑफ, दैट्स व्हाई वी डिड फाउंडेशन, नाउ यू नो अच्छा व्हिच कॉन्टिनेंट हैज व्हाट। अब आपको पता ही नहीं, यू नॉट डन फाउंडेशन और एनीथिंग, यू डोंट इवन नो कि यहाँ पर रॉकीज है, यहाँ पर एंडीज है। So there it becomes a challenge. So that is why I break my course into smaller fragments which you can digest. जिन लोगों की देशभक्ति बहुत ज्यादा जाग रही है कि सर भारत के बारे में नहीं बताया, तो इंडियन ओशन इज स्मॉलर देन अटलांटिक ओशन। तो थोड़ी देर मान के चलो, वैसे तो इंडियन ओशन से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके अंदर का देशभक्त अगर कह रहा है कि हम किसी से कम नहीं है, ये ज्योग्राफी बुक्स गलत लिखी गई, दिस इज द ब्रिटिशर्स हु रोट इट, यस इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम इंडियन ओशन। तो आप बिल्कुल सही, मैं भी आप ही के साथ, मतलब क्या है बुक में लिखा है तो मान लेते हैं, बुक के लिए बस, वरना दिल से मैं आपके साथ, दिल से हिंदुस्तानी। इट कैन बी कंसिडर्ड ओनली हाफ एन ओशन। हाफ कह रहा है, हमारे यहाँ अर्ध मत्स्येंद्र अवतार भी हुए, तो अभी हम आधे अवतार में, हम आधा दिखाना नहीं चाहते, जो भी कहता है ये हमारी जियो पॉलिटिकल चाल है। रशिया अपना ही है, डोंट वरी, पुतिन भी अपना ही है, ठीक है, यूपी से निकले हैं, जड़ें अगर पुतिन की देखी जाए यूपी से ही है। तो ये दोनों तो मतलब आपके अंदर का देशभक्त को मैं थोड़ी देर कह रहा हूँ कि मान जाइए कि ये जो है साजिश है। एवरेज डेप्थ ऑफ ओशंस इज 4000 मीटर, ये भी थोड़ा सा मान लीजिए, वैसे तो आप जानते हैं कि हमारी गहराई कोई नहीं नाप पाया, हम इतने गहरे, ठीक है, बट ये कह रहा है कि 4000 मीटर है तो मान लेते हैं। मार्जिनल सीज आर लेस इन नंबर देन पैसिफिक, तो ये भी कहने की बात होती है, हम कई चीजें दिखाते नहीं, ठीक है। खुशी कह रहे हैं हाँ, और डिस्काउंट में ऑयल भी दे रहा है रशिया इंडिया को, तो खुशी वैसे तो फ्री देने वाला था, योगी जी ने कहा कोई बात नहीं है, तू कुछ रख ले, तेरे यहाँ भी चूल्हा चौका जलता रहे, तेरे घर भी बहू बेटी खुश रहे, तो ये हमारा चलता रहेगा, यू ऑल नो दैट। तो और फिर मोदी जी ने फोन ही करना है, क्या टेंशन, तेल ही तेल, हम फ्री का नहीं लेते, बिल्कुल पूर्वी पूर्वी बिल्कुल ठीक है, बीच में थोड़ी लेंगे, हमें पता है कि अपना ही रोटी और बेटी का रिश्ता है, वहां से सब कुछ है, कोई टेंशन। और बाकी आगे मेरे ख्याल से ट्रेन श्रीनगर तक तो चली गई है, अब हिमालय को चीर के हम आगे पहुंचने वाले कि नहीं, बस ये क्लैरिटी जब तक आप में है तो देशभक्ति आप में स्ट्रांग है, एंड द कंट्री इज इन सेफ हैंड्स, क्लियर रखना चाहिए। बहुत एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, हाँ ठीक है, मुझे पता है आप सब बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट एज है ना अभी, तो इतना पैसे में कैसे गुजारा करना है, इतने में इंटरनेट आएगा, इतने में बुक खरीदेंगे, इतने में सब्सक्रिप्शन होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बेचारा वॉर भी लड़ रहा है, उसका उतना पैसा उधर लग रहा होगा, फिर आप बिल्कुल स्टूडेंट की तरह वो कर रहे हैं, दैट इज दैट। पुतिन आपकी तरह नहीं सोचता, बट आई कैन अंडरस्टैंड, इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी किफायती, एंड दैट्स द नेशनलिस्टिक स्ट्रीक, है ना। तो बाकी बेवकूफ गोरों जो करके वेस्टर्न जोन में इंडिया, इंडियन ओशन में बहुत सारे आइलैंड हैं, ईस्टर्न जोन डीपेस्ट है, सेंट्रल जोन मिड ओशियानिक रिज है, यहाँ पे छोटा सा हमारे पास रिज है। द फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन हैज फ्यूअर इरेगुलरिटीज, तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, फ्यूअर इरेगुलरिटीज। ये भी आप समझ सकते हैं आध्यात्मिक कारणों से, हमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं है, हम एकदम सहज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, है ना, हम सादा जीवन जीते हैं, बिल्कुल, हमें कोई ऊंच नीच नहीं। इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस, और ये सब यूनिवर्सिटीज में बहुत गलत पढ़ाया जाता है, ऊंचा नीचा, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो ओ, अगर पल्लवी जोशी ना होती तो पता कैसे चलता कि ये सब हो रहा है उधर। कितना मतलब क्लैरिटी लेकर आई है, एकदम देवी की तरह लग रही थी जब वो भाषण दे रही थी, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर। तो आंखें खुली की खुली रह गई, वैसे तो खोल के रहते हैं हम लोग, लेकिन हम अपना तीसरा चक्षु नहीं खोल पाए, जब उन्हें देखा तब खुला, बहुत ही सुंदर। इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस एंड डीप्स ऑफ इंडियन ओशन, तो जावा एंड सुंडा ट्रेंच, तो हमारे यहाँ ज्यादा ट्रेंच है नहीं, और फिर हों भी क्यों, ट्रेंच बेकार में डीप एरिया है ना, हम नहीं चाहते सब। वो अलग बात है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं धरती माँ को, धरती माँ फट जाओ, ये सचिन सर कितना अन्याय पढ़ा रहे हैं, इनको समा दो इसको, ऐसा हो सकता है। तो वो मतलब जब हम मिल के बोलते हैं ना, तो हम जो समाना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें ट्रेंच ऑन डिमांड पे ज्यादा रहते हैं, हमारी स्विगी पे डिलीवर हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है, तो हम ऐसे लीनियर डीप्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, कोई दिक्कत नहीं। एक ही है सुंडा, मुझे लगता है ये सब ना रावण की वजह से हुआ, श्रीलंका की वजह से हुआ है, इन लोगों ने किया है। तो हमारी इतिहास तो अभी लिखा जाएगा, उसमें सारी क्लियर हो जाएगी ये सब ट्रेंचेस कैसे आई, बिल्कुल। देयर आर अ नंबर ऑफ ब्रॉड सबमरीन रिजेस, तो इन रिजेस पर क्या होते हैं, कोरल रीफ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी आध्यात्मिक है, रिजेस क्यों बने थे। ये होता है ना कि आपको तपस्या के लिए एकदम शांत और सहजम सुखम आसनम, तो एक सहज सुखदायक आसन चाहिए था, तो शैलो सबमरीन रिजेस वर क्रिएटेड। ये अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी बुक्स में आया नहीं है, अभी लिखना शुरू कर दिया, 7 साल से लिख रहे हैं, और भी आगे लिखेंगे, तो पिछले 70 साल से लिखा नहीं ना उन लोगों ने, भाई उन्होंने बुक्स पढ़ी नहीं थी, अभी तो करिकुलम में लगानी शुरू करी है, अभी सब आए, ठीक है। ये जब तक है थोड़ा बहुत ही पुरानी किताबें पढ़ के सचिन सर इंट्रो कंक्लूजन का वो कर रहे हैं, वरना अंदर से आ जाएगा वो आपके पास, आपको सिर्फ सात्विक खाना खाना है और कोरोनिल पचाने के लिए काम आएगी, और फिर आएगा आंसर, बह जाएगा आपके अंदर से। लाइक अटलांटिक ओशन अ प्रोमिनेंट सबमरीन रिज, कन्याकुमारी में तो सबमरीन रिज होगी, है ना, वो चरणों को धो कर जाती है, That's also.
आप मुझे एक बात बताइए कि मतलब ये कहानी बनाने में कितनी देशभक्ति लगेगी? ये तो मैं भी बना सकता हूँ कि नहीं? मैंने पूरी ज्योग्राफी को अभी अचानक एक नया रूप दे दिया एंड ऐसा ही हमारा मंत्री और हमारा संतरी यही सब बातें कर रहा है आजकल। पार्लियामेंट में बैठ के वो सोच रहा है, पार्लियामेंट क्या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के सोच रहा है इतिहास की किताब लाओ, अब इसमें थोड़ा तड़का लगाया जाए, अच्छा ये हुआ था, हुआ होगा, ये हुआ होगा, ठीक है। और सारे के सारे इंटेलेक्चुअल हैं, गहरे वाले। और जैसे ही इनसे पूछो इसका कोई एविडेंस है, वो तो गलत लिखा गया ना। अभी एविडेंस आपके सामने मैं हूं ना, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास आइडिया कैसे आया, उनसे तो आपने कभी नहीं पूछा कैसे आया, मुझसे पूछो कैसे आया। कल रात मुझे सपना आया। यस, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन ने जो हमें तबाही करी है ना, बहुत बुरा किया है। एवरीवन, इंडियन ओशन, कुछ पॉइंट्स किसी ने कहा था सर मुझे इंडियन ओशन पे पॉइंट नहीं मिल रहे, आपके लिए पॉइंट ही पॉइंट। यस, आपके शहर में एक मार्केट होगी जिस पे लिखा होगा पर्दे ही पर्दे, साड़ी ही साड़ी, जूते ही जूते, चप्पल ही चप्पल। ऐसे एजुकेशन में जब आप दुकान पे आएंगे पॉइंट ही पॉइंट, इतने पॉइंट मैंने मारे। तो पॉइंट की तो कोई कमी नहीं है। रियलिटी में क्या चाहिए? रियलिटी में मैप बनाना आना चाहिए। तो जल्दी से मैप बनाएंगे किसका? इंडियन ओशन का। पूर्वी बोल बताओ इंडियन ओशन के पॉइंट नहीं मिले, देशद्रोही। देशद्रोही क्या? पूर्वी अंतरात्मा से नहीं जुड़ा हुआ इसका, हिंद महासागर पे नहीं आया, अंतरात्मा से जुड़ा भी नहीं है इसका। एवरीवन ओके, इजी टू ड्रॉ। ये मुझे लगता है कि इंडियन ओशन इजी टू ड्रॉ है। आई आल्सो वांट टू टेल यू, तो पॉइंट्स मैंने आपको बताए एंड आई सेड इन दैट वे जस्ट फॉर द पीपल हु फील कि यार पॉइंट्स कहां से लाएंगे, पॉइंट्स को मारो बोलिएगा। मैं कहूंगा कि ये ओशन वेरी क्लियरली क्लोज्ड इन नॉर्थ है। ट्रू। और एक और चीज है इस ओशन के बारे में यूनिक कि ये जो कोस्ट लाइन है ना, ये ऑलमोस्ट सॉलिड है। सॉलिड मींस एलिवेटेड प्लेटू टाइप है। यहाँ भी जागरोस एल्ब्रूस ये रहता है। हमारा वेस्टर्न घाट भी एक एलिवेटेड है ना, बहुत ही स्ट्रांग। और यहाँ पर क्या अरकान, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया का भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड है। तो इसकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन इज वेरी लाइक क्लियर टेबल लैंड्स, मोस्टली प्लेटू एरियाज है ना, पेनिनसुलर प्लेटू, अरेबियन प्लेटू, अफ्रीकन प्लेटू। तो बड़ी स्ट्रांग वो है, तो इसको आसानी से काट नहीं सकते। ठीक है, मार्जिनल सीज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4। यस, यहाँ पे अंडमान सी, यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा है, अरापुरा सी, ईस्ट तिमोर का तिमोर सी, इधर तो क्या पैसिफिक हो जाता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। सो ये भी नॉर्थ में ज्यादा दिख रहे हैं। ट्रू और नॉट? अच्छा, वी हैव दिस आइलैंड व्हिच इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये भी अपने आप में एक प्लेटू टाइप का है। देन वी हैव दिस मोजाम्बिक चैनल आल्सो। अच्छा, यहाँ पर हमारा असुंशन रीयूनियन है, मॉरिशियस, कोमोरोस, श्रीलंका, सोकोत्रा, ऐसा है। ये कंटिन्यूएशन हो जाते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। कैन वी मेक दैट? ये क्लियर आना चाहिए। वी नॉट मेकिंग दिस, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ये तो आना ही आना चाहिए, अगर ये नहीं है तो गड़बड़ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ will be narrow for most of it. Why? Logic. Continental shelf will be narrow for most of it. Why? क्यों लगता है ऐसा? Because of plateaus or because of highlands on the coast? ठीक है, everyone make sense? प्लेटू है, लेकिन हमें पता है कि वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियाज वेस्ट कोस्ट एक्सपीरियंस्ड सबसिडेंस। तो यहाँ पे वाइड होगा। रिमेंबर, ऐसे नीचे चला गया था। इन लोगों को पता है थोड़ा बहुत। दीपशिका इज सेइंग रिवर डिपोजिशन इज वेरी लेस टू दीपशिका, बट प्रॉब्लम आपकी बात सही है, लेकिन ये रिवर बहुत तोड़ू है, गंगा रिवर। अगर गंगा रिवर आपको कहीं कम लगती है तो आप जरा अपना चेक करवा लीजिए नेशनैलिटी। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों इतना बड़ा डेल्टा बनाती है कि दे विल वाइडन द शेल्फ। सो ईस्ट कोस्ट पे नैरो है, कृष्णा गोदावरी। अगर कृष्णा गोदावरी पे आपकी भक्ति कम है, आपको चेक कराना चाहिए। ये तो इंडिया का हो गया। सो बे ऑफ बंगाल में ये तो देखिए माउंटेन है, माउंटेन कोस्ट पे, और म्यांमार, इंडोनेशिया, सब तो चोर है। ठीक है, हमारा तो इंडिया ना अलग है, इन सबकी नैरो, लेकिन हमारी वो है। इसको क्या कहेंगे? ये वरदान है, नदियों का वरदान, क्योंकि हमने भक्ति करी। कृष्णा गोदावरी देखिए इतना सुंदर, कावेरी है ना, ये तो हमारा आशीर्वाद है हमारे पास। और बाकी लोग लाइक इन सब के दे डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट, इन सब की नैरो है।
और नैरो में तो आपको पता है ऑयल भी नहीं मिलना ज्यादा, ऑफशोर फिश भी नहीं मिलेगी, ऐसे मरेंगे तड़प तड़प के। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेडागास्कर की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है, बट वरना इनको नहीं मिलना था। मेडागास्कर एक आइलैंड है। श्रीलंका को भी हमने अपने उसमें ले लिया क्योंकि भगवान राम होकर आए थे, तो जहां भी जाते हैं तो भला होगा ही। सौरभ बोला इरावदी का भी वाइड है, तो इरावदी यही तो हो गया। इरावदी, अच्छा इधर को कुछ आएगा, माउथ्स ऑफ इरावदी, बट म्यांमार है सौरभ, तो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इतनी इज्जत नहीं देता मेकॉन्ग इरावदी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे अंदर का देशभक्त कहता है कि इट इज मोर अबाउट इंडिया, है ना। देखिए जैसी देशभक्ति आपको दिखाई देती है व्हाट्सएप और फेसबुक पे, आपको उसका कोई लॉजिक नहीं नजर आता, फिर भी आप करते हैं। तो मेरे बारे में लॉजिक क्यों देख रहे हो? मैं भी अपनी देशभक्ति ऐसी करूँ। वो तो किस्मत है आप लोगों की कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इंडिया की है शेल्फ, अभी पता नहीं चला है, बुक्स को आने वाला है, अभी वो सैटेलाइट आई नहीं है, हमारी तो सारी शेल्फ है, ये मैंने बनाया नहीं। बट अगर मैं ये डाल दूं डिस्टॉर्टेड इतिहास एंड एक्चुअल, बताओ कितने लोग मान जाएंगे? एक्चुअली मैंने फोटो लग जाएगी कि ये तो पहले बुद्धिजीवी आए हैं जिन्होंने सच में साबित कर दिया है कि एक्चुअली हमारी शेल्फ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और सच बताऊं उन्होंने शेल्फ का मतलब भी नहीं पता होगा। ये सुनो, तो मैं भी कई बार मेरा भी मन करता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या मैं किताबों के परे भी कुछ कह सकता हूँ। सैयद बोले फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, सैयद वायरल हो जाएगा, मुझे ऑल इंडिया डिबेट्स में बुलाया जाएगा, फिर साइंटिस्ट आकर मुझे चैलेंज करेंगे, कहेंगे कि दिखाओ कहाँ से ये, विच सैटेलाइट यू हैव यूज्ड। मैं कहूँगा बेवकूफों, तुम आज भी सैटेलाइट का ही इंतजार कर रहे हो, सैटेलाइट। और सबसे सही तो होगा अर्नब विल बी ऑन माई साइड। बीच में मैं ऐसे कहूँ एक मिनट पानी पी लो, अर्नब चालू, अर्नब फिर देखो काफी चीजें हो जाएंगी, अर्नब फिर उन्हें मार्स तक घुमा के लाएगा, जब सबके होश उड़ जाएंगे फिर ऐसे कुछ और बात करनी इंडियन ओशन की, जब तक माथा टेक चुका। नहीं तो वो मूछ वाले जनरल साहब भी तो हैं। यस, जब ऐसे तोप का मुंह घुमाओ, मूछ वाले जनरल साहब फायर फायर फायर, अमेजिंग, कोई टेंशन नहीं। आपको पता है मैच फिक्स है, अंपायर अपना है, थर्ड अंपायर भी अपना है, कंप्यूटर भी अपना है, ऑडियंस भी अपनी है, कोई टेंशन नहीं। आप बोल रहे हो चक्का दे देगा, जैसे ही आपकी विकेट गिरी 6, क्या हुआ? ये रूल तो 70 साल पहले था, विकेट पे लगने पे ऐसे बोलते हैं, अब नया रूल है ऐसे बोलते हैं। कितने लोग सपोर्ट करेंगे? पूर्वी कह रहे हैं भूगोल बदल दिया आपने, पूर्वी ऐसे नहीं होता है, अब तो असली भूगोल लाए, द रियल भूगोल केम थ्रू दिस। लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। न्यू पर्सपेक्टिव, वेरी गुड, आप दूर तक जाएंगे, राखी यश। हाँ चलिए, तो हमने क्या नहीं डाला, तो ये तो आपको समझ में आ गया था सभी लोगों को। पहले ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई दे रही है, इधर की वाइड है, इधर की किस लिए वाइड हुई? ये जो मीकोंग वाले जो थोड़े बहुत हैं म्यांमारी, उनको भी थोड़ा सा मैंने दे दिया, चलो मान लिया तुम लोग का। यहाँ मेडागास्कर वाला इज इट ओके, और मेडागास्कर के नीचे एक रिज है, चलेगा। अब ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, अब इस रिज को मैं बता रहा हूँ एवरीवन, एक रिज है जो यहां से एक्सटेंड करती है लक्षद्वीप से, और ये साउथ में आएगी, याद रखना है। एलसी रिज बोलते हैं इसको, लक्षद्वीप चागोस रिज, एलसी रिज। और ये नीचे आकर यहाँ पे एम्स्टरडैम प्लेटू बन जाता है अंटार्कटिका के पास ये, और ये क्या है? दिस इज मेडागास्कर रिज, दिस इज लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी लिखा होता है, लक्षद्वीप चागोस रिज, एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम सेंट पॉल प्लेटू। ये नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेटर ऑन मैं कर दूंगा, 2-3 साल में चेंज होने वाला है, अभी इसको एम्स्टरडैम सेंट पॉल प्लेटू मान लीजिए, ठीक है। अभी अपनी सिटीज का काफी नाम चेंज होना है, तो फिर ओशंस में भी कर देंगे। खुशी कह रही है एम्स्टरडैम तो यूरोप में, बिल्कुल एम्स्टरडैम यूरोप में, तो वैसे भी सोचो बनता ही नहीं है ये वाला, तो एम्स्टरडैम सेंट पॉल प्लेटू। तो खुशी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब ना पुराने हमारी सोच में वो आ गई, वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से खुशी कह सकते हो, और नहीं तो वो क्वेश्चन है ना यूरोसेंट्रिक। ओशन के नीचे तक आप देखो यूरोसेंट्रिसिटी है, कितना ज्यादा नाइंसाफी। खुशी चेंज कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम बुक ही बदल देंगे, सारी बुक्स बदली जा रही हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से नहीं हो पाता है, वी विल डू दैट। अच्छा ये जो जा रही है, यहाँ पर एक आइलैंड बताया था सोकोत्रा, ये सोकोत्रा आइलैंड, ये कार्लसबर्ग रिज है, और यहाँ पे वो जो मॉरिशस सेशेल्स है, ये छोटी रिजेस है। सौरभ कह रहे हैं कि कुछ नाम दे रहे हैं, सौरभ पोल करवा लेंगे ना लोगों से, जितने लोग जुड़े उतना अच्छा है, विल पुट समथिंग, सजेस्ट करें आप लोग नाम, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया। देखिए सोकोत्रा है, तो सोकोत्रा की तरफ एक रिज आ रही है, सोकोत्रा रिज, और एक यहाँ पर आ रही है सेशेल्स रिज, सेशेल्स और कार्लसबर्ग रिज। तो सेंट्रल रिज है हमारे पास कि नहीं, एलसी रिज। पूर्व में कह रहे पोल, देखिए अब सब तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं, ऑनलाइन किसी को आंसर आता हो चाहे नहीं आता, तो पोल में तो दबाई देते हो, है ना। तो अब ऐसे होने वाला है, एजुकेशन में हर चीज में पोल होगा,
और पोल भी किस लिए करा रहे हैं? पोल खोल के लिए, ऐसा नहीं कि एजुकेशन के लिए, सबकी पोल खोल करेंगे जितने भी वो हैं, तो सबने पोल कर दिया और जो भी ज्यादा वोट लाएगा वही सही माना जाएगा। सही क्या है? ज्यादा वोट इज सही। ऐसा थोड़ी कि यार जो किताब में लिख दे वो मानना ही मानना है, लिखने वाले के भी तो बायस हो सकते हैं, ठीक है, मेजोरिटी बिल्कुल। और ये फेयर भी है, स्कूल से नहीं पढ़ता है मेजोरिटी विंस, वही पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर एक रिज बन गई, इसको बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज, याद रहेगा, मजाक मत करो, लिखते रहो बैठकर। कहीं सोच रहे हैं सचिन सर आज मूड में है, ऐसे ही मेरा मन है कि जब पब्लिक जो है एंटरटेनमेंट ही कर सकती है। वो महान नारी है ना, क्या नाम है उनका, फिल्म में बता के गई थी, 3 चीजों पे देश चलता है, एंटरटेनमेंट। हाँ, माँ विद्या बालन जी। मैंने कहा मैं भी करता हूँ यार। तो इनका नाम क्या है? ये सोकोत्रा रिज हो गई, ये कार्ल्सबर्ग हो गया, कार्ल्सबर्ग और सेशिल्स रिज, एम्स्टर्डम, सेंट पॉल। इस पर खुशी ने एकदम सही ऑब्जेक्शन उठा दिया है कि एम्स्टर्डम तो जब है ही नहीं यहाँ पर, कैसे रख दिया ये, ठीक है। और हो सकता है यही अमृत मंथन हुआ, आप समझ रहे थोड़ा सा, तो चेंज तो पक्का बनता है। लक्षद्वीप, चागोस, 90 डिग्री ईस्ट। अच्छा, अब ये बच गया ओपन एरिया। जो ओपन एरिया, इसका नाम क्या रखेंगे? अरेबियन बेसिन। अरेबियन बेसिन लग रहा है। ये सोमालिया के पास कौन सा होगा? सोमाली बेसिन। मेडागास्कर के पास क्या होगा? मेडागास्कर बेसिन। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होगा? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन। नाम थोड़े कठिन है, अभी रख लो, वैसे तो चेंज कर लेंगे, जो चाहोगे हो जाएगा। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, अरेबियन बेसिन, इसको क्या रखा है इन्होंने? रीयूनियन बेसिन रखा। अच्छा ठीक है, साउथ इंडियन बेसिन। तो रीयूनियन आइलैंड जहां पर है ना, उधर उन्होंने छोटा बेसिन भी बनाया, यहाँ पे रीयूनियन बेसिन। और इसको क्या रखा? साउथ इंडियन ओशन बेसिन। देखो मजे मजे में पूरा पूरा हो गया। अच्छा, इधर का ऑस्ट्रेलिया का हमने शेल्फ नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया का शेल्फ देखिए, यहाँ पे नैरो है, बट उसके यहाँ पर एक ट्रेंच है। सो इधर ट्रेंच एक ही है, इंपॉर्टेंट ट्रेंच, सभी लोग याद रखेंगे, ये ट्रेंच है। ट्रेंच का नाम क्या है? सुंदा ट्रेंच। इसी को जावा ट्रेंच भी बोलते हैं, जावा आइलैंड के पास। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल मार्जिन नैरो हो जाएगा, यस। और ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा सा वाइड है, बट ऑस्ट्रेलिया भी बिकॉज ऑफ दिस। एवरीवन जॉयसली, खूब आनंद के साथ हमने अपना हिंद महासागर कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया? बना लेंगे यार, क्या टेंशन है। एक ऑफलाइन टीचर, ज्योग्राफी ऑप्शनल का ऑफलाइन टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताया था, सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, बाकी तो कोई जानता ही नहीं। बोल दिया रोक थोड़ी सकते हैं, क्योंकि वही पैदा हुए हैं, उन्होंने अवतार लिया, बाकी कोई नहीं। देखो ये प्रीवियस ईयर में भी आता है, सिर्फ मैं कराता हूँ, बाकी सब अटलांटिक करा के भाग जाते हैं। क्यों? बाकियों को जल्दी है, कोई दिक्कत है? ऑफलाइन के टीचर, उनको पता है कि ऑफलाइन का टीचर एक बार जो क्लास में बता रहा है, क्लास के बाहर तो बात जाती नहीं है। ऑनलाइन वाले टीचर की तो सारी बात बाहर आती ही नहीं आती। हाँ, बोला कि भैया मैं ही पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चे पास होते हैं, बच्चा मान लेता है। बच्चे, आप सोचिए ना, आपने फीस दी है और आपको बोले सिर्फ आप ही को पता है, आप खुश होगे? ये सबको आता है यार। मैं इसलिए कहता हूँ इस वाले में तो मैं लोड लेता ही नहीं। आना चाहिए, यू शुड नॉट हैव द फियर ऑफ इट, यू शुड नॉट हैव द फियर ऑफ इट। एंड ये आ गया क्वेश्चन तो मार्क्स ही मार्क्स है ना, शुड वी डू इट और नॉट? एंड आपको ये भी बता दिया है कि सीक्वेंस क्या है, जस्ट हैव दैट सीक्वेंस। खुशी कह रहे हैं उन्होंने कैसे पढ़ा था सर, वो तो खुद वो कर्मयोगी है ना वो टीचर, उनके अपने नोट से सिर्फ उन्हीं को तो आता है। आप बोले उन्होंने कैसे पढ़ा, वो किसी टीचर के पास ही नहीं गए, वो अवतार है, अवतार। वो क्लास में कह भी देते हैं कि मैं अवतार हूँ, आपके उद्धार के लिए मैंने जन्म लिया। जन्म की भी क्या लिया, मैं तो कई ग्रहों पे जा रहा था, पृथ्वी ग्रह पे मैं आ गया इस टाइम 2020s में, तो यू आर लकी। ऐसे भी तो मैं सोचता हूँ मैं ना अवतार हूँ ना कुछ हूँ, जो बुक में लिखा वही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद भी पब्लिक मुझे ऐसे इंट्रोडक्शन भेज देती है जिसमें मैं हिल जाता हूँ। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, इंडियन ओशन इज द मोस्ट सीक्रेट ओशन। लिख दो लास्ट लाइन, क्या टेंशन? इंडियन ओशन इज द मोस्ट सीक्रेट ओशन, टेक अ डिप इन द होली वाटर्स, एंड उसमें आवाज आएगी ओम। बताओ अच्छा कंक्लूजन है कि नहीं है? किसी ने सोचा ही नहीं, हमको बताया नहीं। फिर बता रहा हूँ, कंक्लूजन को कोई रोमांस देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखो सर आपने अंडमान निकोबार रिज नहीं बताई। अरे भाई इसी को मैंने 90 डिग्री ईस्ट रिज कहा था, चलेगा? तो कुछ नाम हो सकते हैं, एज आई सेड, यू नो, इफ यू लुक एट अदर थिंग्स देयर माइट बी सम नेम्स व्हिच आर अ लिटिल चेंज। उस पे लोड नहीं लेना है। साउथ इंडिया में साउथ इंडियन ओशन, सेंट्रल बेसिन, अरेबियन बेसिन, सोमाली बेसिन इसने लिखा नहीं है, इसने यहाँ पर लिखा रियूनियन बेसिन, फिर मैंने मेडागास्कर बेसिन किया। सर अकेडमी पर एक स्ट्रेटजी बताई है सर ने, ऑप्शनल में 350 लाओ, जीएस में 300 भी आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाओगे ऑनेस्टली। देखिए भाई खुशी, मैथमेटिकली तो ये ठीक है मैथमेटिकली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी मैं ना पूछना चाहता हूँ किसी टीचर ने कहा है, मैथमेटिक्स इट एड्स अप। बट पर्सन हुज एक्चुअली बीन वर्किंग फॉर द एग्जाम, और जिनके स्टूडेंट्स एक्चुअली मेन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर द हाईएस्ट स्कोर इन ऑप्शनल वाज 289। 350 तो आता ही नहीं।
है ना। अब आप सोचो 350 इसमें लेकर आ जाऊंगा और 300, ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट जीएस में स्टूडेंट्स आर टचिंग 400, सो अ प्रैक्टिकल टीचर, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, देखिए ज्योग्राफी में टारगेट करिए 300, इफ यू गेट 300 वेरी गुड, अदरवाइज 280 टू 90 तो आना चाहिए। दैट इज माय थिंग, आई एम बीइंग रियल अबाउट इट। मेरे बच्चे इंटरव्यू अभी भी दे रहे हैं, सो आई बीन वर्किंग विद देम, एंड जीएस में आई टेल देम, जीएस में कमजोर मत छोड़ के जाना, कमजोरी मत। सी इट सो हैपेंस दैट आई एम एन ऑप्शनल टीचर, तो मैं ऑप्शनली सेल कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जीएस वाला बेकार है, ऐसा नहीं है भाई। व्हाई शुड आई प्ले विद योर करियर? जीएस में 4 बॉक्सेस पड़े हैं, उनमें से भी मार्क्स निकालिए, गो टुवर्ड्स 400 इन जीएस। 300 ऑप्शनल में, जीएस में 400, क्योंकि उतने ही आ रहे हैं भाई। गलत बात क्यों बोले स्टूडेंट को? व्हाई शुड वी मिसगाइड द स्टूडेंट जस्ट बिकॉज आपको पता है वो स्टूडेंट प्रीलिम्स नहीं पास करेगा कभी भी, वो सिर्फ भक्त बनना है, तो उसको कुछ भी बोल दो। बट अगर वो बेचारा प्रीलिम्स पास करता है और वो मेंस देने जाता है विद रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, तो दिस इज वेरी अनफेयर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, जिस भी टीचर ने बोला, थैंक्स टू देम, एंड आपने जो सुना, मेरा अपना ये कहना है, आप पिछला भी ट्रेंड देख लीजिए। आई हैव स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 300, अभिषेक अग्रवाल, अपनी प्रियंका शुक्ला, अजय जैन तो टॉपर्स में रहे हैं 320 प्लस, वो 2-3 साल पहले दे रहा था, तो भी ऑप्शनल में 300 रखिए। अगर किस्मत अच्छी हो तो 300 प्लस आ गया, नहीं तो 300 माइनस, इसके आसपास रहना है। ऑप्शनल में 400 टारगेट, सॉरी जीएस में 400 टारगेट करिए भाई, एनीवन हु इज एनीथिंग ऑन दिस। खुशी कह रहे हैं सर अदर थिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे क्वाड हो गया, 80% वर्ल्ड का मिनरल हो गया, सर जियो सेंट्रिक रखना है या वो करना है, ऐसा ट्रू। तो अभी तो मैं इतना धार्मिक चीजें या आध्यात्मिक चीजें कर रहा हूँ, ठीक लग रही है आपको खुशी? वो ठीक लग रही है तो आप क्वाड भी कर लीजिएगा। अगर आपको ठीक लग रही है कि यहाँ पर देखिए ये हो सकता है, पूर्वी कैंसर सौम्या पांडे मैम ने कहा है। सौम्या पांडे जो आईएएस हैं, वो आज से 4 साल पहले क्लियर की है, याद है? तब सीन डिफरेंट था। यू टॉकिंग टू अ टीचर टुडे। मैं तो आज ही का बताऊंगा ना आपको, मैं भी अपने बच्चों को 300 प्लस 325 पे पुश कर रहा था, बट वो यूपीएससी ने भी तो चेंज करता है ना, यूपीएससी भी इवॉल्व करता है। तो सौम्या पांडे मैम अब आपके लिए तो आईएएस हैं, आपको लगता है आईएएस बनने के बाद यूपीएससी के ट्रेंड्स को फॉलो कर रही होंगी, अपनी ट्रेनिंग कर रही होंगी, है ना? ट्रेनिंग कर रही होंगी, अपनी आईएएस डिस्ट्रिक्ट देख रही होंगी। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सर व्हेन विल यू टेक सौम्या पांडे सेशन? वेहान कह रहे हैं कि सर क्या हम ओशन के रिसोर्सेज को वो करें? तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। डिस्कस मिड अटलांटिक रिज, अब इसमें कहीं पर वो नहीं पूछा ओरिजिन एक्सटेंट रिलीफ, आप क्यों बताओगे फ्लोरा फाउना? ऐसा आपसे पूछा क्या? कंसाइज अकाउंट पूछ रहा है, किसका? बॉटम रिलीफ का पूछ रहा है, तो आप फ्लोरा फाउना क्यों बताओगे? हाँ, टुवर्ड्स कंक्लूजन आप ये कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट का क्या मतलब होता है, फर्स्ट इसका पूरा ट्रेंड बताया था ना। पहला पैराग्राफ क्या बता सकते हैं? जनरल थिंग्स अबाउट द ओशन बता दीजिए, पहले में बता सकते हैं, बाकी में स्टिक टू द क्वेश्चन। सौम्य पांडे का जो अनअकैडमी में जो टॉपर्स के साथ जो एक चैट होनी थी, उसके लिए मैंने कानपुर के बच्चों को रिक्वेस्ट किया था, उसमें खुशी हैड सेड कि सर आई विल बी अवेलेबल, तो खुशी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप लोग उसमें अभी ध्यान मत भटकाइए, इस पे फोकस करिए। ठीक है एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस? इंडियन ओशन कर लेंगे, ऑल ओशंस डन। अब आते हैं, टॉपिक का नाम है मरीन रिसोर्सेज। व्हाट इज द टॉपिक? मरीन रिसोर्सेज। तो ओशन से हमें क्या मिलता है, जल्दी से बताइए, ओशन से हमें क्या मिलता है? व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम द ओशंस? व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, क्विकली जल्दी से बता दीजिए। सर सी फूड मिलता है, ऑयल मिलता है, मिनरल मिलता है, प्रेशियस मेटल्स मिलता है, फिश, मिनरल, सॉल्ट मिलता है, ऑयल, फिश, मेटल, इकोनॉमी, ट्रेड भी मिलता है, ठीक है। रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ नॉट जस्ट सिग्निफिकेंस और यूजेस, पर्टिकुलर रिसोर्स, ठीक है। तो एवरीवन, जो भी आपने लिखा है सब कुछ ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, 3 कैटेगरीज। वन इज बायोटिक, आई होप यू आर राइटिंग आल्सो, प्लीज राइट डाउन, मिनरल और एनर्जी, जो भी आप कह रहे हैं। एवरीवन, व्हाटएवर यू हैव सेड इज करेक्ट। आई एम सेइंग कि उन सारी चीजों को आप चेक कर लीजिए, इन्हीं में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स, रॉक्स, और मिनरल्स, रॉक्स आर मेड आउट ऑफ मिनरल्स, सो केमिकल एलिमेंट्स आर देयर, एंड एनर्जी, दोनों मिलने वाले। कहां पे मिलेंगे? वेयर विल आई फाइंड देम? ओशन के कौन से हिस्से में मिलते हैं? विच पार्ट्स ऑफ द ओशन विल आई फाइंड देम? क्विकली, शेल्फ,
शेल्फ शेल्फ शेल्फ, इतना प्यार क्यों है आप लोगों को शेल्फ से? मैं तो कह रहा हूँ ओशन वाटर, ओशन वाटर में होंगे। डू यू नो ओशन वाटर हैज गॉट 19 एलिमेंट्स डिसॉल्व्ड इन दैट इंक्लूडिंग गोल्ड। आप शेल्फ पे अटक गए। सी दिस इज वेयर टीचिंग कैन लिमिट योर इमेजिनेशन। आई वांट यू टू विजुअलाइज। मैंने कहा मरीन रिसोर्स का मछली कहाँ पे मिल रही है, मछली पानी में तैरती मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब शेल्फ में होगा तो आपको 3 जोन बता दिए थे, लिटोरल, नेराइटिक, पेलाजिक, कहीं पर भी हो सकता है। पानी में हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, ओशन के बॉटम पर हो सकता है। Certain things will be placed at the bottom. अब सोचिए hydrothermal vent was there and sulfur came out and sulfur got precipitated over there. Is it on the bottom or not? And I also want to tell you bottom क्या oceanic crust के अंदर buried भी तो हो सकता है। If I am pulling out oil from the offshore region, वहां पर होगा या नहीं? अब बताइए, people who are saying shelf, how limited your answer is and how limited your imagination was. I hope you understand. तो अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करना है। देखिए, the more I feed information, the more I will take away your imagination. आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या है? 3 कैटेगरी में मिलने वाले, कहां मिलेंगे? सर ऑल पार्ट्स ऑफ द ओशन, द वाटर इटसेल्फ, द ओशन फ्लोर्स एंड डीप इनसाइड आल्सो, सो ऑन द सरफेस एंड सबसरफेस। ठीक है, कई बार आई हैव सीन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इज एंजॉयिंग अ हिंदी मीडियम क्लास। सर समझ बहुत आ रहा है, परफेक्टली ओके, बट द फैक्ट इज टू गेट मार्क्स यू विल रिक्वायर दैट वोकैबुलरी। If you are not able to use वो जनरल चीजें लिखेंगे, if you write that general thing, you're not going to get marks. 350 तो अब आते नहीं है भाई, 350 तो गलत फॉर्मूला है। 350 and 300, that's a गलत फॉर्मूला with changing time. A teacher who is keeping track of the examination will every year redraw the strategy for the student. वो टीचर की responsibility. But what I'm trying to say here is that if you are an English one, you're going to write the exam in English और आप मजे मजे के लिए हिंदी सुन रहे, सर का बहुत सही समझ में आता है, दिल तक गड़ जाता है, अब पेपर में चाहिए, so we'll need that. And this worst happens in the case of Hindi people कि यार मुझे बहुत अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था तो मैं इंग्लिश टीचर को सुन रहा हूँ। Your own English is compromised, but you are listening. So sir was telling you tragedy and you heard it romantic. आप जो समझ रहे हो समझ रहे हैं, true or not? So that's a very very big challenge. That's a very very big challenge. वहाँ comprehension गड़बड़ा जाती है. So please be in that habit now. इसलिए बोला geography made simple. I know it is not simple. Make sure you read ocean bottom relief from that. Vocabulary के लिए कर रहा हूँ. Vocabulary के लिए कर रहा हूँ. जैसे ही आपका basic खत्म होता है, moment your basic geomorphology, climatology, oceanography is over, after diagram book, I am going to put you into a vocabulary book. Important vocabulary words have to be there and use them. Use them. Get that? चलिए, वो जो डिक्शनरी आपने ली थी वो भी मुझे नहीं पता ली है या नहीं ली है, वो मैं ऐसे नहीं छोड़वाने वाला, उस पे काम होगा अभी। तो बायोटिक, मिनरल एंड एनर्जी। अच्छा, बायोटिक क्या होते हैं जल्दी से बताइए। लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैंने ओशन में 3 कैटेगरीज में डाला, प्लैंक्टन, नेक्टन, बेंथिक। चलिए तो सुने ही नहीं थे, न्यू वोकैबुलरी नो। Biotic should not just mean living. Plankton. Plankton ऐसे होते, they are very light. They are very light, and for movement they don't have to invest anything. They are floaters. But then we have the ones which are heavier, which are big. They will have to push something. These are called swimmers. So can I say fish are nekton? Fish are nekton. True or not? And benthic कौन होते? Living on the bottom. Living on bottom. तो मुझे एक एग्जांपल दो benthic का जल्दी से। Benthic crab. Okay, crab is there. Octopus is there. देखिए, benthic mobile and benthic immobile भी होता है। Immobile means just attached to the bottom. हिंट दे दिया मैंने, जल्दी से बताओ कौन है? benthic immobile. Very good Brijesh. Corals. यहाँ पर क्या है? Fish. ये क्या है? आपने सुना है phytoplankton and zooplankton. यहाँ आएगा algae. कुछ लोग algae की बात कर रहे हैं and all that. Everyone with me on this? Clear है? कोई क्वेश्चन? पूरी जैसे जीरो एंथला बता के मुझे डराओ मत। एल्गी है ना, एल्गी में एल्गी को डेफिनेटली एक बेस चाहिए होता है, तो कुछ बेस पर भी मिलेगी, कुछ पार्ट उसका फ्लोटिंग भी मिल जाएगा। कुछ ऐसे फ्लोटिंग सी वीड होता है, सी वीड फ्लोटिंग भी हो सकता है, बट वो कनेक्शन से भी आता है। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये मैंने क्या बताया आपको? ये मैंने आपको वोकैबुलरी बताई। ये मैंने आपको क्या बताया? बायोलॉजी बताया। बट आई एम अ टीचर हु इज टीचिंग व्हाट? ज्योग्राफी। सो बायोटिक रिसोर्स में ज्योग्राफी तो नहीं बताया ना। बायोटिक रिसोर्स को ज्योग्राफी कैसे कहूं? मैं कहना चाहता हूं लिटोरल प्लस नेराइटिक zones have more than 90% biomass of oceanic realm. समझ में आ गया? where and everyone in the class should know the meaning of littoral narrative. littoral क्या था? high water to low water. narrative क्या था? low water to 200 मीटर। ये दोनों के दोनों शेल्फ तक लिमिटेड है ना? yes, so can I say high water to shelf break? can I use this vocabulary ना? अगर आप पहले दिन क्लास में है तो हो सकता है मिस हो गया, बट पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, ठीक है?
व्हाट अबाउट पेलाजिक? पेलाजिक या ओशियानिक, इसमें क्या है? these are virtual deserts. These are virtual deserts. क्यों? वहां तक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंच रहे. The rivers are being nutrients and everything. Nutrient नहीं जा रहा. Deep में जाओगे, pelagic बेटा is open sea also, no? Pelagic may have a photic zone. Pelagic will have a photic zone. Pelagic will have a dysphotic zone. Pelagic will have a aphotic zone also. समझ रहे हो? So वहां पर दोनों चीजें आपको देखनी. They can be bottom also. They can be bottom also. अगर मुझे इसे मैप बनाना हो ना, सब लोग ध्यान दीजिए. मैं ये कह रहा हूं, I don't know whether you can appreciate this or not, कि अगर ये ओशन है तो this accounts for 90% of ocean and this one is desert. समझ में आया? क्योंकि यहीं पर तो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं. न्यूट्रिएंट्स पहले यहीं आएंगे ना. ये मैं कहना चाह रहा हूं. इज एवरीवन ओके? सर लेकिन यहां पर भी कुछ लाइफ हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. कीमोसिंथेसिस कौन सा बताया था? एक्सेप्शन. अब सचिन सर ने डेजर्ट बता दिया. एक टीचर आके बताओ बकवास एकदम गलत है. देखो यहाँ पर आपको कभी पता है यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट हो सकते हैं. एक्सेप्शन है कि नहीं? एक वेल यहाँ पर तैर रही है, मर गई, यहाँ पर गिर गई, उसकी डेड बॉडी है. नीचे क्या चल रहा है? व्हाट इज देयर? पार्टी. किसकी पार्टी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पार्टी है नहीं? सर बट अभी तो आपने कहा कि सर यहाँ तो डेजर्ट है, ये वेल क्या कर रही है? वेल को खाना कैसे मिलेगा? डोंट यू नो दैट वेल्स माइग्रेट? किस लिए माइग्रेट करती है? खाने के लिए तो करती है. दे माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. आपने सुना है वेल का फेवरेट फूड इज क्रिल. KRIL. These are very small fish, one of the highest protein content for a fish. एंड वेल उसे खाने जाती. कहां पर होती है? ये सर्कम अंटार्कटिक बेल्ट में मिलती है. So around the Antarctic there is a belt. उसमें krill, मैंने सॉरी किल लिख दिया. किल मत लिखना, krill लिखना. Krill is the fish. So there are migratory fish. They will be there. देख तो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है. But these are not thriving with lot of life as are the continental margins. तो क्या मैं कह सकता हूँ continental margins are the ones जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है? Is everyone okay? तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये आना चाहिए. If you are thinking geographically, so these are there. I would want you to read from NCERT. NCERT में भी दिया होगा ये. NCERT किसी ने कहा था उसमें नहीं दिया हुआ. Make simple. NCERT में तो दिया है. Can I expect you to do that? वहां से डायग्राम, कुछ नेम्स, कुछ टर्म्स डालना शुरू करेंगे. Everyone tell me if you are following me, if you are doing the work which I am telling you every day, isn't it adding to your confidence? Aren't you there all now यार? कुछ टेस्ट है तो वो भी करेंगे हम. I am saying similarly these vocabulary words इकट्ठा करो ना. Yesterday also I told you, एनर्जी आधी मत फंसाओ. करना है तो पूरा ही कर लो. Yes, फिर चाहे IAS चाहे ISIS, पूरा ही करो भाई. आधा नहीं करना है. आधे मन से कुछ नहीं होता है. आधे मन से सिर्फ एनर्जी फंस जाती है. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. तो हर एक पे दम नहीं देना यार. Because then you will be so divided in life that all your energy will be dispersed, scattered, and you will not be able to live a very, very fruitful, desired, powerful life. जो आप पसंद करते हो उसको 100% मिल दो और बढ़िया से करो. Whatever is needed for that वो मैं करूंगा. That is that. ठीक है. So हमने ये भी कर लिया. तो ज्योग्राफी तो यहाँ पे वेयर का एलिमेंट आया या नहीं आया? एंड वेयर में कौन सा आया? कॉन्टिनेंटल मार्जिन. और ये क्या आ गए? ओशन बॉटम्स. बेंथिक भी हम कह सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ बेंथिक तो यहाँ भी होता है. बेंथिक मींस डीप ना, बॉटम, ओशन बॉटम. तो बेंथिक तो ये भी होगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल मार्जिन तक तो कुछ माल मिल रहा है, आगे ये चला जाता है. तो ये कौन सा रेल्म है? पेलाजिक. इज एवरीवन विद मी? अच्छा, विद इन दीज कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के पास देयर आर स्पेशल एरियाज ऑफ बायोटिक वेल्थ. Within the continental margins also, it is not that the biotic wealth is uniformly distributed. ऐसा नहीं है. उस बेल्ट में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं. एंड स्पेशल एरियाज क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. इज एवरीवन विद मी? सबसे पहला आता है कोरल रीफ्स. इनको मैं लिख रहा हूं इमोबाइल बेंथिक. चलेगा? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इमोबाइल बेंथिक? इमोबाइल जो मूव नहीं करते, बेंथिक अटैच टू द बॉटम. एवरीवन विद मी ऑन दिस? ट्रू. कोरल रीफ्स के बारे में आप क्या जानते हैं जल्दी से बताइए. क्विकली, कोरल रीफ इकोसिस्टम्स एंड वेयर आर दे इन द वर्ल्ड?
नियर ऑस्ट्रेलिया, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, हाई बायोडाइवर्सिटी। तो पहली बात तो दे आर मेड अप ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पोलिप्स। तो स्नेहा बोली म्यूचुअलिज्म बिटवीन जूओजेंथिला एंड पॉलिप्स, म्यूचुअलिज्म बिटवीन जूओजेंथिले एंड पॉलिप्स। तो ये कहाँ से आया है स्नेहा, ये बताइए मुझे, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन है? क्योंकि खुशी तो ये कह रही हैं कि ये सिम्बायोटिक है ना, सिम्बायोटिक है। आप म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं, कहीं तो होगा ना। फिर अब दिक्कत ये है, अगर वहां पे 4 ऑप्शन आ गए तो क्या करें? और वहां पर आ गया पॉलिप एंड एल्गी आ गया तो क्या करें? दिक्कत है ना। तो कई बार ऐसे वर्ड्स तो उठा लेते हैं और रट भी लेते हैं। म्यूचुअलिज्म, एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, ये सारे वर्ड हम क्यों वो कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये वर्ड्स हमने यूज तो कर लिए। कंकन कह रहे हैं मेरे को भी पता था। कंकन, आपको तो बहुत सी चीजें ऐसी पता है जिनको अभी खोज बाकी है ना, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ। बट मुझे एक चीज पता है, सिम्बायोसिस एक ऐसा एसोसिएशन है बिटवीन टू स्पीशीज दैट बोथ विल बेनिफिट, बोथ हैव अ रोल टू प्ले, है ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिप है, ये पॉलिप है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, इंसेक्ट है, हैप्पी पॉलिप है। बट अनहैप्पी क्यों हो जाता है? इसको कोई भी खा जाएगा, है ना, खतरा है। व्हेन इट गोज आउट टू हैव फूड, ये निकला और इसका शिकार हो गया। तो पहले तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक शेल बनाता है, एक्सोस्केलेटन, ऐसा 1 BHK इसने अपना बना लिया, जगह रखता है एनसीईआरटी के लिए, बाकी चीजों के लिए, जो भी है। बाहर जाना डेंजरस है, तो ये इसका एक्सोस्केलेटन है, दिस इज एन एक्सोस्केलेटन। प्रॉब्लम है, फिर भी खाना तो खाएगा, खाना खाने बाहर जाएगा तो फिर खा लिया जाएगा। तो देयर इज अ एल्गी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो ग्रो करने के लिए हैबिटेट ढूंढ रहा है, तो वो इस पर आकर ग्रो करता है। शेल्टर नहीं है अनिर्बान, ये गलत वाले वर्ड मत यूज करो, शेल्टर है ना, हैबिटेट दे देता है। और ये क्या है, बिकॉज दिस इज एल्गी। एल्गी क्या होता है? प्लांट होता है, प्लांट मतलब प्रोड्यूसर, तो ये फूड बनाता है। 90% ऑफ द पॉलिप्स फूड अगर इसी से आ जाए तो दिक्कत क्या है? सो व्हाट डज द पॉलिप डू? प्रोवाइड अ सबस्ट्रेट, अ हैबिटेट। व्हाट डज द एल्गी डू? प्रोवाइड फूड। ठीक है। अच्छा, यहां से पानी में तैरता हुआ फूड जा रहा है, passes in front of the window of the polyp, will the polyp eat it or not? जोमेटो डिलीवरी जा रही, क्यों नहीं जाएगा, पक करके खा जाएगा उसको। So 90% of the food of the polyp is coming from the algae, but if there is some more floating, हो जाए। बट कई बार क्या होता है, इतना बड़ा पैकेट आ रहा है, ये खाना चाहिए नहीं, ये आएगा तो इधर ऐसे फंस जाएगा, पॉलिप चोक हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। सो छोटा छोटा वो निकालता रहेगा। अच्छा, नंबर 1। दूसरा चीज, वन मोर थिंग इज अबाउट दिस इज कि जो पॉलिप होते हैं ना, सम पॉलिप्स आर एकला चलो पॉलिप्स, वो अकेले रहते हैं। बट देयर आर सम पॉलिप्स which don't stay alone, they stay in colonies। सब अपना अपना एक 1 BHK स्टडी रूम विद एनसीईआरटी एंड एकेडमिक बुकलेट सब कुछ बना के रखते हैं। ये पूरा ऐसे कोटा फैक्ट्री टाइप इनका रेडी रहता है मामला। इस स्पीशी ऑफ पॉलिप को कहते हैं रीफ बिल्डिंग पॉलिप्स। सो ऑल पॉलिप्स आर नॉट रीफ बिल्डर्स, फ्यू पॉलिप्स आर रीफ बिल्डर्स। सो जो स्पीशीज एक साथ ग्रो करती है, एवरीवन विद मी? तो अब मैं इसमें म्यूचुअलिज्म लूं नहीं लूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई, आप लोग कहां से क्या जानकारी लेकर आ रहे हो, जो लेना है लो। मेरे लिए बहुत एक सिंपल चीज है कि coral reefs are created by the symbiotic association of a plant called algae and an animal called polyp. Polyp gives the habitat, algae gives the food, and not all polyps is are reef builders। जो reef build करते हैं उनको बोलते हैं hermatypic polyps। बायोलॉजी मुझे भी आती है और काम वाली चीज में उठा लेता हूँ। एल्गी अलग अलग कलर की हो सकती है, जूओजेंथ द वर्ड जूओजेंथिले रेफर्स टू द पिगमेंट। जैसे आपने देखा है फ्लावर्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, उनमें पिगमेंट अलग होता है। जूओजेंथिले इज द टाइप ऑफ पिगमेंट। तो सम ऑफ देम विल बी रेड टाइप के होते हैं, कुछ ग्रीन टाइप के होते हैं। दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर्ड स्ट्रक्चर्स।
इज एवरीवन ओके? दे आर वेरी फ्रेजाइल। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये सिम्बायोसिस टूट जाता है। तो ये म्यूचुअलिज्म और जूओजेंथिली, मैं इन सब वर्ड से आसानी से इंप्रेस नहीं होता हूँ, बट फिर भी अगर आपको पता है, आपकी जानकारी आपके लिए, मेरे लिए सिंपल है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट इज देयर, एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ब्रेक्स एंड द एल्गी विल लीव द कॉलोनी। अच्छा, ये किससे बना है? ये उसका एक्सोस्केलेटन है। किससे बनता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये कैल्शियम कहां से आता है? ये ओशन में डिजोल्व है, डिजोल्व। और ओशन में डिजोल्व नहीं है, ओशन के रॉक्स में भी है और डिजोल्व भी है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेंबर ओशन में डिजोल्व होती है, तो उनसे वो निकालता है, उनसे वो निकालता है। एंड जनरली कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट इन कलर, बट बिकॉज ऑफ द पिगमेंट ऑफ द algae it acquires these beautiful colors. When it breaks, when the symbiosis breaks because of temperature, उससे coral loses its color and that is called coral bleaching. अब इतनी साइंस मुझे पता है और मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, है ना? टाइप ऑफ एसोसिएशंस वो सब मैं डालने नहीं चाह रहा। मुझे ये पता है कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, ज्योग्राफी ट्रॉपिकल एरियाज, सो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन शैलो जोन्स। सो मैं इन्हें कहूंगा शेल्स में। व्हाई शैलो जोन्स? बिकॉज लिविंग है, फोटोसिंथेसिस चाहिए, ये इनका एरिया होता है। तो सम पीपल आर सेइंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉपिकल पार्ट है, तो इंडिया में भी है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, द एंटायर बेल्ट इज देयर। वी विल हैव अ फुल चैप्टर ऑन कोरल रीफ्स, बट ये मुझे लगा कि आई शुड बी स्ट्रेट अवे कॉलिंग देम, एंड दीज आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। व्हाई? बिकॉज पॉलिप ने तो थोड़ा सा खाना खाना है, पॉलिप विल ईट ओनली लिटिल फूड, बट ऑल दैट एक्स्ट्रा फूड विल अट्रैक्ट व्हाट? फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सबके लिए फूड एरिया हो जाता है, सबके लिए फूड एरिया हो जाता है। यस, इट इज लाइक जैसे हमारे यहाँ आपने सिख पंथ में देखा होगा, संडे को लंगर होता है कि नहीं गुरुद्वारे में? तो यहाँ लंगर चल रहा है, बायोटिक लंगर इज गोइंग ऑन, मजे से आओ, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं। सो ये नर्सरी ऑफ ऑल फिश हो जाएगा, दिस बिकम्स द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, एवरीथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? ये यहाँ का एडवांटेज है। एंड जो भी इसमें थोड़ा सा भी एनर्जी आता है उसमें से मैक्सिमम ये उसको फिक्स कर लेता है, तो इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। तो दिस इज अ प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। Marine life depends a lot on this, and this is threatened because of multiple things. Sir, it is shallow water, then how benthic? देखो बेटा, benthic का मतलब बॉटम होता है, benthic का मतलब बॉटम होता है। ये ओशन है, ये benthic है भाई, ये भी benthic है, ये भी benthic है बॉटम। बच्चा आपने कहा था कि benthic मतलब डीप, ऐसा ना? benthic, benthos, और क्या कहा था हमने? एबिसो, एबिसोपेलाजिक, बेंथीपेलाजिक, ऐसा कुछ नाम दिया था कि नहीं दिया था? एपीपेलाजिक, मीसोपेलाजिक, ठीक है। तो वो तो प्रीफिक्स थे, बेंथी का कई जगह पर यूज हो सकता है कि नहीं होता? सॉइल साइंस में वी कॉल द सॉइल साइंस एज पेडोलॉजी, और बच्चों के डॉक्टर को कहा जाता है पीडियाट्रिक्स। सो पेड का तो कहीं भी यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बेंथिक का यूज कहीं और नहीं हो सकता सर? बेंथिक का मतलब बॉटम ड्वेलर। बाकी कह रहे हैं आफ्टर 200 मीटर, मैंने नहीं बताया भाई बेंथिक, मैंने ऐसा नहीं कहा 200 मीटर में, ये आप गलत ले रहे हो। मैंने तो यहाँ पर बताया था आपको कि अगर आपको ये लेना है, ये लिटोरल है, ये नेराइटिक है, और ये पेलाजिक है, और ये बेंथिक या बेंथोस, बल्कि हमने कहा था ओशियानिक। ऐसा कहा था कि नहीं कहा? ऐसा कहा था हमने, तो बेंथोस कहा था। अब हम कह रहे हैं कि बॉटम ड्वेलर के लिए भी, बॉटम के लिए भी वर्ड बेंथिक यूज होता है। बॉटम ड्वेलर का भी तो बेंथिक आएगा, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा इसको? इमोबाइल बेंथिक। तो सी बेड जो होता है, बेड के लिए भी तो बेंथिक आ रहा है, इसको हमने बेंथोस कहा था। अगर आप देखें तो पेलाजिक, ओशियानिक, बेंथोस, और यहां पर भी हमने एपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, बेंथिक। तो बेंथिक सिग्निफाइज डेप्थ, बेंथिक आल्सो सिग्निफाइज बॉटम। तो ऐसा तो है नहीं कि शैलो एरियाज का बॉटम नहीं होगा, शैलो एरियाज का बॉटम भी तो होगा ना। सो दैट इज वेयर, सो इफ यू हैव सम कंफ्यूजन, आई होप दिस डिस्कशन हेल्प यू क्लियर दैट। सो इमोबाइल बेंथिक इज कोरल, मोबाइल बेंथिक इज अ क्रैब, मोबाइल बेंथिक इज अ क्रैब, वो चल भी सकता है, नीचे चलता है। इज एवरीवन ओके? तो हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल जोन्स, स्पेशल बायोटिक। एक और जोन जो हमारे पास स्पेशल आता है वो है इंटरटाइडल इकोसिस्टम। फिर आपको बताया था ऐसा, लो टाइड एंड हाई टाइड, रिमेंबर? और दोनों के बीच के लेवल को क्या कहते हैं? एमएसएल। तो यहां पर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कभी सबमर्जेंस हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, जैसे नो मिनरल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर भी हाईली अडेप्टेड रीजन है। इकोलॉजी में इस एरिया को इकोटोन कहा जाएगा। बिटवीन ड्राई एंड वेट ऑन आइदर साइड टू इकोसिस्टम है। इस तरफ लैंड है तो कौन सा हुआ? टेरेस्ट्रियल, और इस तरफ क्या हुआ? एक्वेटिक। दो इकोसिस्टम्स का ओवरलैप जोन, इकोटोन। स्पेशल स्पीशीज आ देयर, स्पेशल एडेप्टेशंस आ देयर। और इसी इकोटोन में एक बहुत ही स्पेशल
जो आपने वेजिटेशन सुना है वो भी एक स्पेशल इकोसिस्टम हो जाता है, मैंग्रोव रीजन्स। सो हर इंटरटाइडल में मैंग्रोव होना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी दैट एवरी इंटरटाइडल विल हैव मैंग्रोव, but mangroves are special vegetations which are created in areas which are their intertidal region. Is everyone with me on this? Mangrove bhi clear ho gaya? Fourth, which is very very special, is this is ocean. What water? Sea water. And this is a river coming in. River is bringing fresh water. यहाँ पर क्या हो रहा है? Mixing हो रहा है नहीं हो रहा है? ये एक स्पेशल एरिया हो जाता है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी यूनिक हो जाती है, वेरी वेरी स्पेशल. दिस इज कॉल्ड एस्चुराइन हैबिटेट. ठीक है, फ्रेश वाटर सी वाटर मिक्स होता है, उस वजह से न्यूट्रिएंट का मिक्स बेटर होता है, वाटर में टर्बुलेंस रहती है, ऐसा ना, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. फोर जोन्स, हाँ ब्रैकिश वाटर इंटरमीडिएट सैलिनिटी है, दैट इज दैट. एंड फिफ्थ जोन इज एक स्पेशल एरिया जहां पर एक तो मिक्सिंग जहां पर भी होगी ना वाटर की मिक्सिंग, दैट्स अ गुड थिंग, whatever it can be, so that will lead to more mixing, more nutrients, more aeration. और एक जगह पर न्यूट्रिएंट सरफेस पर आते हैं बॉटम से, these are called upwelling zones, where cold nutrient rich water comes from bottom to the surface, those are called upwelling zones. When I'm teaching you ocean currents, तो इस पर बात और करेंगे. मतलब मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो लॉरेंशियन, बट we are talking about areas where water, deep cold water is coming from the bottom. ठीक है, हाँ आप जो कह रहे हो कि मिक्सिंग ऑफ कोल्ड वाटर, तो जहां भी मिक्सिंग होगा वहां पर भी हेल्प करेगा, तो अपवेलिंग जोन्स भी हो सकता है, एंड करंट का मिक्स आल्सो, मिक्सिंग जोन्स ऑफ करंट. ठीक है, अब एग्जांपल आप जो भी दे रहे हो, मैंने तो आपको क्या बताया, मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग फिशिंग, मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग फिशिंग. मैं क्या देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट बायोटिक वेल्थ, यू आर थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग कि यार वहां पे मैं कैसे एडवांटेज लूंगा, बट द फैक्ट इज कि these are the conditions which are favorable for life to be there. So phytoplankton will be there, zooplankton will be there. If they are there, they will attract fish also. So पहले nutrient, sunlight and aeration, abiotic factors. Three abiotic factors: nutrient, good sunlight and good mixing, so aeration of water. Three abiotic conditions favorable will bring more life over here, more photosynthesis. So what will happen? Floaters will come. Yes or no? Planktons will come. When the planktons are in plenty, fish will come, nekton will come over there. Yes or no? तो हमारे बायोटिक वेल्थ हो गया. So lot of fish, small fish, big fish. Yes or no? अब वो कहां पर आ सकती है, कोरल रीफ पर भी आ सकती है. You need not have mixing of currents over there. It can come in the regions of intertidal, mangrove region. Yes, mouth of the river पे आपने देखा टर्टल ब्रीड करने आ रहा है, बहुत बार आता है. मैंग्रोव रीजन्स तो आर स्पेशल फिशिंग रीजन्स, फिशिंग जोन्स होते होते हैं. उसके बाद एस्चुराइन हैबिटेट एंड अपवेलिंग एंड मिक्सिंग इज आल्सो देयर. तो ये सब कंडीशंस, ऑल दीस एरियाज मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई न्यूट्रिएंट्स, हाई सनलाइट, better photosynthesis opportunity. As a result, the microscopic plants and animals increase, then the macro plants and animals will increase, and this is how things are created. जब वो सब एनिमल्स आ जाएंगे, फिशिंग के लिए सब अच्छा हो जाएगा, तो ह्यूमन बीइंग विल आल्सो कम एंड इट विल गिव अस मोर फिशिंग अपॉर्चुनिटीज. इज एवरीवन ओके? So I understand, you read in books, JC Leong में पढ़ा होगा, और probably some GS coachings have said that, like fishing is better in zones of mixing current. They are absolutely correct. But I'm saying that's just one idea. Fishing को किससे जोड़ दिया मैंने? Life से जोड़ दिया. Wherever life will be more favorable conditions, fishing will come and other things will also. So quickly draw a map. By now you know how to draw a map if you've done my foundation class. If you missed the foundation class, first of all, keep doing it along with that, and the foundation 2 which we are doing, उसमें हम NCERT करेंगे. Everyone with me? So this is around 30 degrees. Latitude, yes. It has been seen that the major fishing grounds of the world are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
They are all located in the cool temperate belt, and then we have 9 and 10. सब कूल में, ट्रॉपिकल में कम ही होते हैं। क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाई टेम्परेट फिशिंग इज मोर कमर्शियली डेवलप्ड देन ट्रॉपिकल फिशिंग, व्हाई ट्रॉपिकल फिशिंग इंडस्ट्री हैज नॉट डेवलप्ड दैट मच, क्यों लगता है ऐसा आपको? व्हाट इज गुड अबाउट टेम्परेट एंड व्हाट इज सो बैड अबाउट ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल में रॉन्ग हो रहा है, इसमें राइट हो रहा है। मधुकर बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ करंट। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ करंट हो गया, यहाँ पर करंट मिक्स हो गया, तो ऐसा होता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु नो ओनली दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे ये सोचते हैं तोड़ देंगे फोड़ देंगे, इनको सिर्फ यही समझ में आता है, एंड दे थिंक दैट द टीचर टोल्ड देम, ये तो हमारे मास्टर ने बताया था। आई एम सेइंग देयर आर 10 पॉइंट्स टू दिस। ट्रॉपिकल आर डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, ट्रॉपिकल आर डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव द मनी एंड द कैपिटल, मनी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड फॉर सी प्रोडक्ट्स इज हाई बिकॉज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ फिश पे जिंदा है भाई ये लोग। यहाँ पर क्या है? ऑल्टरनेटिव, खेती अच्छी है ना यहाँ पर, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप। अब इंडिया को देख लो यार, इतना खाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? मेंढक की तरह टकरा के आएगा, वहां पे तो मिक्सिंग करंट हो रहा है, और करके आगे आंसर, आंसर में कुछ मिल नहीं रहा। मास्टर जी वसत जो आपने कहा था वो मैं लिख कर आया हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है यहाँ की। ट्रॉपिकल क्रॉप्स जो है, ट्रॉपिकल फिश है, दे स्पॉइल वेरी फास्ट। गर्मी है ना, शेल्फ लाइफ इनकी बहुत कम है। आप पकड़ के लाते हुए मछली किसी तरह लेकर आए और आपके पास कोई जेटी नहीं है, कहीं पे रख नहीं सकते उस मछली को, वो आके सड़ गया। ट्रू और नॉट? तो हमारा एक सबसिस्टेंस फिशिंग चल रहा है, हमारी तो कमर्शियल चल भी नहीं रही। सबसिस्टेंस, यहाँ पे एक्चुअली कमर्शियल शिपिंग बनी है भाई। दे हैव स्टेट ऑफ द आर्ट शिप, फिश को वहीं पकड़ेगा। एवरीवन प्लीज लिसन टू दिस। फिश को पकड़ा, उसी बोट पर, उसी शिप पर, फिश को काट के साफ करके पैक कर दिया। इफ दे वांट टू पैक इट, दे विल पैक इट इन द फ्रीजर। इफ दे वांट टू सॉल्ट इट, वो सब करके सब कुछ डाल दिया कंटेनर में। The ship reaches the coast, वो कंटेनर एज इट इज उठा लिया जाता है रेफ्रिजरेटर, पुट ऑन अ ट्रक, टेकन टू अ मॉल, मॉल का एम्प्टी फ्रिज हटाया और ये वाला फ्रिज उधर रख दिया। एंड टू एंड, नो प्रॉब्लम, नो स्पॉइलेज। नहीं सर, वहां पे ना करंट मिक्स करते हैं, कर लो। ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे ना थोड़ा लेवल बड़ा होना चाहिए। अपने में क्या है? एक बोट किसी तरह से बैलेंस करता हुआ ले गया, थैले में भर के लाया मछली, कहां पे लगाया? कोई जेटी नहीं, आपने देखा? बोट खींच के तो बेचारा किसी तरह से वही लुंगी और जाल में लेकर आया हुआ है। अब खरीदने के लिए कोई नहीं है मार्केट में, सो कुछ मार्केट में चला जाएगा, नहीं तो खुद ही खाएगा। और वो मार्केट में, अगर फिश मार्केट में चले गए एंड योर नोज वर्क्स, तो आप जहर में। ट्रू और नॉट? तो फ्रेश तो आ ही नहीं रहा माल। ये सुनो, तो कमर्शियल फिशिंग है, कमर्शियल फिशिंग नहीं। और सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्टर एवरीवन व्हिच वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट, वेरी हाई बाई कैच। व्हाट डू यू मीन बाय बाई कैच सर? ये ज्योग्राफिकल पॉइंट है, वेरी वेरी क्लियर ज्योग्राफिकल पॉइंट। सर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लैंकटन इन दैट रीजन ड्यू टू व्हिच फिश आर नॉट अट्रैक्टेड टू दैट रीजन। देखो यार, बड़ा अजीब सी बात लिखी है, टोटली गलत है। पहला तो ये सेंटेंस नहीं पता चलता किस रीजन की बात कर रहा है प्लैंकटन, और अगर प्लैंकटन है तो उसमें फिश क्यों नहीं आएगी? मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं चाचा, बट ठीक है, लिख दिया तो कोई बात नहीं है ना। सब लोगों को लग रहा है ऑपोजिट लिख दिया, क्यों लिख दिया ये बताता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना इसको कहा जाता है कॉड एंड हेरिंग। यहाँ पे कॉड और हेरिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे दबा के टूना मिलती है, यहाँ पर दबा के एनकोवीज मिलती है। इफ यू गो ओवर दैट, यही फिश आने वाली। अंटार्कटिका में मैंने आपको क्या बताया? क्रिल मिलेगी। यहाँ पे ना डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होती। सो यू आर गोइंग, यू पुट द नेट एंड नेट भर के क्या मिलेगा? कॉड मिल गया, हेरिंग मिल गया। इसमें अगर आपने जाल डाला तो क्या मिलेगा? तो खुशी कह रहे हैं रोहू कटला। खुशी, जहां तक मुझे पता है रोहू और कटला तो सी वाटर वैरायटी नहीं, वो तो रिवर वैरायटी। ठीक है, अब आपके जाल में जो निकलने वाला है ना, दैट इज अ साइट टू सी। ट्रॉपिकल वाले में व्हाट यू सी इन दैट नेट, इट इज अ साइट टू सी। इतनी चीजें निकलेंगी, कुछ तो आपने लाइफ में देखी नहीं होंगी, एंड सम ऑफ देम यू वुड नेवर वांट टू सी। इतना डेंजरस और इतनी बायोडाइवर्सिटी है, पूरा जाल भर के क्या क्या निकलेगा सोच नहीं सकते। वो रेहान बोल रहे क्रोकोडाइल। रेहान, तुम्हें ज्यादा नहीं पता है, ठीक है? ऐसे क्रोकोडाइल नहीं घूम रहा है कि यार समुद्र में क्रोकोडाइल। प्लास्टिक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग कचरे की बात करते, कचरा तो पूरी दुनिया में है। These areas are known for variety of organisms. यही सेम लॉजिक लगता है why lumbering is developed in temperate countries and lumbering is not developed in tropical equatorial ones, because यहाँ पर trees are not in pure stands, the trees are very very diverse, the trees are very very diverse. So fish इतनी ज्यादा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके नेट में अगर आपने say for example 1 टन ऑफ फिश पकड़ा, 0.8 टन तो डिजायरेबल नहीं हो, फेंकना पड़ेगा। वो क्या हुआ? बाई कैच। दिस इज ज्योग्राफिकल रीजन। सिर्फ मिक्सिंग करंट पे, अबे यार मिक्सिंग करंट को मारो गोली, यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे भी अपवेलिंग हो रही है, क्या टेंशन है?
यहाँ देखो अपवेलिंग हो रही है, तो अपवेलिंग के भी जोन है, बट वो रटवा दिया, बुक से रटवा दिया, मास्टर से रट लिया, हमें एक ही पॉइंट आता सर एकदम से और वॉल होता है, पीवाईक्यू में भी आया था इसलिए। बेटा वहां पर लिखने हैं पॉइंट, वहां पे आंसर भी करने हैं। सो बोथ द फैक्टर्स आर देयर, फिजिकल ज्योग्राफी फैक्टर्स आर फेवरेबल इन टेम्परेट जोन्स, ह्यूमन ज्योग्राफी फैक्टर्स आर आल्सो फेवरेबल इन टेम्परेट जोन्स। डू वी गेट दैट? और मैं तो कह रहा हूँ हमारी डाइट, हमारा खाना, हमारे फूड अवेलेबिलिटी, दैट आल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। इंडिया में नॉर्थ इंडियंस अगर फिश नहीं खा रहे तो कोई दिक्कत है? हाँ, बंगाल में फिश के बिना खाना थोड़ा सा दुखी रहेगा, तमिलनाडु कोस्टल प्लेस दे वुड वांट द फिश टू बी देयर, कैसा? यस। राखी कह रहे हैं रिलीजन आल्सो प्लेज अ रोल। राखी ऐसा मुझे नहीं लगता कि रिलीजन प्लेज दैट बिग अ रोल, गुजराती को छोड़ के बाकी जो हिंदू है वो भी मछली तो खा रहे हैं। यस, कई तो ये भी डिक्लेयर करते हैं मछली तो वेजिटेरियन ही होती है, व्हाटएवर इज किसान ऑन लैंड सेम इज फिशरमैन टू वाटर। ट्रू। बाकी आपको धर्म से लगाना है, जिस मर्जी से लगा लो। आप देख लो कि प्रोटीन में हमने देखा बिल्कुल गुजरात में वी हैव सीन प्रोटीन का शॉर्टेज है, बट इफ यू गो टू पीपल हिंदूज इन तमिलनाडु केरला दे डू कंज्यूम फिश। यस। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ वेजिटेरियनिज्म हाई होने की वजह से, बट वेजिटेरियनिज्म हाई के बावजूद भी, वेजिटेरियन हाई होने के बावजूद भी वी हैव लुक्ड एट द मीट प्रोडक्ट्स कंपेयर्ड टू फिश आर डिफरेंट केस। आपने देखा बाबा तो कई जो फिश से इलाज भी करते हैं, वो बोलो मछली डाला ठीक हो गया। इस मछली का इलाज होता है कि नहीं होता है? मछली का अचार डालती पब्लिक, मछली का क्या क्या नहीं करती है। और अगर मैं एक बार कोई मान भी लूं कि इट इज बिकॉज ऑफ रिलीजन, तो मुझे बताइए बाकी भी तो है ना, अगर इंडिया को हटा दूं बाकी जगह पे डेवलप होता, ट्रू और नॉट? तो आपने अभी देखा इन ओशन बॉटम रिलीफ, डिड यू सी यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ था कि नहीं? और हमारे यहाँ पर भी एरिया भी, और श्रीलंका तमिलनाडु ये डिमांड भी इस डिमांड जोन में है। Everyone, can you handle a question in a holistic manner if the question comes on biotic reserves of the oceans, marine biotic reserves? What are they? Where are they? How is their distribution? What are the special areas? Ideas about fishing, and we are looking at temperate areas more developed. So, which is the largest country with the largest production of fish in the world? Fish कहाँ सबसे ज़्यादा produce होगी? Largest producers of fish? Japan, okay? Japan, okay? Japan और कुछ? इंग्लैंड, कनाडा, जापान, ओके? इंग्लैंड, कनाडा, जापान, कनाडा दोनों तरफ है। यहाँ आपने देखा है पूरा का पूरा नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक और भी रीजन है बच्चों, यहाँ पर ये भी लिखेंगे, शेल्फ भी आपने देखे ना, वाइडर शेल्फ इन टेम्परेट रीजन, आइस एज की वजह से, आइस एज की वजह से, वो भी तो ज्योग्राफिकल रीजन सोचिए, दैट विल गिव यू मोर दिस थिंग। यहाँ पर आपने सुना था डॉगर बैंक, नॉर्थ सी में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको बताया था ग्रैंड बैंक। यस, यहाँ पे बहुत बढ़िया वो मछली होती है, सामन बताई थी आपको, वो ब्रीडिंग के लिए नदी में आती है, फिर दैट इज नोन फॉर सामन। मैप में इंपॉर्टेंट फिश का नाम भी बता दिया, ठीक है? ओके परफेक्ट। हाँ, तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स कनाडा आया, जापान आया, चिली, पेरू, चिली, ये भी नाम आते हैं। सो एवरीवन एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आज से 10 साल पहले और 15 ईयर्स अगो, इनफैक्ट ज्योग्राफी बुक्स टॉक अ लॉट अबाउट जापान एज अ लीडिंग वन, कनाडा डेफिनेटली, यूरोप में यूके बिल्कुल आता है, नॉर्वे बड़ा प्लेयर है, नीचे चिली बड़ा प्लेयर है, ठीक है? आई थिंक इवन जीसी लियोंग टॉक्स अबाउट इट, जीसी लियोंग टॉक्स अबाउट इट। मैं बताना चाह रहा हूँ ये सब गलत है। द टॉप प्रोड्यूसर इज चाइना, देन इंडिया। क्या बात करो सर, आपने तो कहा उनका डेवलप्ड है। हाँ डेवलप्ड है, कौन मना कर रहा है? तो कोचिंग में बता दिया, कोचिंग में ही बताया था ना, उधर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ करंट। अब मैं आंसर दे रहा हूँ, दिस इज द थिंग। अब क्या करें? मिक्सिंग ऑफ करंट गया तेल लेने। तो बताओ क्या हो गया इधर? मामला गड़बड़ हो गया है, मछली खत्म हो गई है, फिनिश फिनिश। क्या बात करें सर? ओवर फिशिंग। देखो अभी आपको बताया, अभी आपको बताया अगर खेती करेंगे, यस, अगर खेती करेंगे, इफ वी आर डूइंग खेती, सो वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिजर्व्स ऑफ द लैंड, यस। कुछ ही फिर आप मैकेनिकल पे अटकती हैं सर। 3 नंबर पे था 2017-18 का डेटा, आप चेंज हो गया क्या? आपको तो मुद्दे पे होता ही नहीं, फिर आप कहते हो सर आपने मुझे टोक दिया। भाई एफएओ का रोज डेटा आता रहता है, हर साल का डेटा आता रहता है। अभी मुझे अपना कॉन्सेप्ट देने दो, आप कई बार कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड होते ही नहीं हो, आप डेटा में ही होते हो बच्चे। तो फिर से आपने कहा, फिर आप कहोगे 5 खुशी हैं सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, फिर से टोक दिया, आई एम सॉरी, बट आपको बता रहा हूँ कितना फैक्ट ओरिएंटेड मत होइए बच्चे। हाँ जी, सो ओवर फिशिंग हो गया। सो इट्स लाइक एग्रीकल्चर, यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैंड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी हैव न्यूट्रिएंट्स। उतना ही तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वही कर सकते हैं। सिमिलरली फिश इज द सेम थिंग, वो ब्रीड करेगा ना। इफ यू गो एंड कैच, एंड दीज आर कमर्शियल वंस, बिग फिश शिप्स, दे विल कैच एवरीथिंग। तो पहले टूना बड़ी आया करती थी, अब टूना बेचारी इतनी पकड़ी जाती है, क्यों सर? टूना को क्या हो गया? बड़ी नहीं होती, बड़ी होने नहीं देते, बचपन में उठा लेते हैं यार। we'll have to wait for them to grow or not, it's a natural ecosystem, उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है। so these areas have become overfished। तो सर फिर ये चाइना इंडिया कैसे आ गया स्टोरी में? आपने तो कहा कि अभी तो जैसे तैसे हम लोग कर रहे हैं, किसी तरह से पॉसिबल ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइगर है, टाइगर है, टाइगर का हंटिंग बैंड है या नहीं?
हंटिंग बैंड है। बट आफ्टर ह्यूमन पॉपुलेशन चिकन का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये मुर्गी का चूजा सबसे ज्यादा है, और चूजे को हंटिंग बैंड नहीं है, फिर भी ये बढ़ रहा है। टाइगर का बैंड है, वो बेचारा फिर भी कम हो रहा है। वाई सो? वाई सो? सर इसका तो हम फार्म बना लेते हैं ना सर, इसको तो हम ब्रीड कर लेते हैं। वो देखो प्रियंक सोच रहा है हैबिटेट डैमेज। अरे चिकन का क्या हो रहा है, इतनी पॉपुलेशन कैसे हो गई? ब्रीड, हैबिटेट डैमेज। थिंक अबाउट चिकन इतना ज्यादा क्या हो गया। हाँ मुझे पता है तुम टाइगर, मैं तुम्हारा ध्यान टाइगर नहीं चिकन की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ प्रियंक, मुझे पता है आप एकदम सही है। ध्यान दीजिए, जिस तरफ शिक्षक का इशारा उस तरफ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्न ये है कि मछली तो कम हो गई, उनकी तो मछली कम हो ही रही है। उनकी मछली कम इसलिए हो रही है क्योंकि वो हंटिंग कर रहे हैं। चाइना और इंडिया हंटिंग नहीं कर रहे हैं। मछली पकड़ना, कैप्चरिंग अ फिश इज हंटिंग। दो तरह की फिशिंग होती है, एक है कल्चर फिशिंग, एक है कैप्चर फिशिंग। दिस हैज लिमिट्स, दिस इज अनलिमिटेड। समझे आप? इसको हंटिंग कहा जाएगा। इसलिए जापान, पेरू, चिली उनका माल हो गया खत्म। इंडिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है? वी आर ब्रीडिंग अपने रिवर्स में, अपने पॉन्ड्स में, इनलैंड एरिया में भी और मैरीटाइम एरिया में भी वी आर ब्रीडिंग देम। चाइना इज द लीडर इन दैट। डू वी गेट दैट? इंडिया भी उसमें काफी लीड कर रहा है। अब इंडिया और इंडोनेशिया, इनमें चलता रहता है, कभी वो ऊपर हो जाएगा, कभी वो नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे किसी ने पूछा सर डेटा का बदल गया क्या? भाई मैं रोज रोज का नहीं, फोन करके पूछा भाई आज किसी ने मछली पकड़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडिंग नेशंस। So we have come on the graph because of something called as marine and aquaculture. समझ में आ गया? कल्चर फिशिंग एंड कैप्चर फिशिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। विच वन इज सस्टेनेबल? विच वन इज सस्टेनेबल? कल्चर करो ना। तो बताओ, द होल डिबेट जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, मासूम बच्चों को, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग करंट वहां पे मछली ज्यादा मिलती है। चल भी ना, मछली हावे ना। मछली कहां पर है? चाइना में। जो भी कहता है इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु कोस्ट में खूब सारा हो रहा है। इनफैक्ट बिहार में हो रहा है। बिहार में आपने देखा होगा, अब तो सरकार इसे ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से आपने सुना है या नहीं सुना है? ब्लू रेवोल्यूशन, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, रियल चीजें। एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इंडोनेशिया आल्सो। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इनको लोगों को फीड करना है। ट्रू और नॉट? इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ ह्यूज एग्रीकल्चरल लैंड। चाइना के पास भी है, इंडोनेशिया के पास क्या है? और जो है वो तो उसमें पाम खेती कर रहा है। ट्रू और नॉट? सो थिंक अबाउट इट, गेट अ होलिस्टिक पिक्चर। बस एक बार कहीं पे किसी किताब में पढ़ लिया, अच्छा मिक्सिंग ऑफ करंट है वहां पर, वो है, खाली हो गया, खाली हो गया, नो मोर करंट। गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है एक्वाकल्चर के लिए। सर अब लोन ही नहीं प्रोवाइड कर रही है, आई थिंक दे आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग फॉर द दिस थिंग आल्सो, बोट्स, और उसके लिए भी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। बट ऑलवेज रिमेंबर, अभी मैं डेटा नहीं दे रहा हूं, मेरे पास डेटा है 2004 से 2020 तक का डेटा, किस तरह से कैप्चर फिशिंग हैज स्टैग्नेटेड इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी लिमिट है ना। कैप्चर फिशिंग हैज स्टैग्नेटेड इन द वर्ल्ड एंड कल्चर फिशिंग इज ऑन द राइज। और ये डिबेट ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के पास लाए जाते हैं, जीएस वाले को तो लॉलीपॉप पकड़ाया, बी हैप्पी, मजा आया कि नहीं, ताली बजाओ, दैट इज देयर। आई होप यू विल बी स्मार्ट टू आंसर अ क्वेश्चन ऑन बायोटिक रिसोर्सेज फ्रॉम द ओशन। आज हमने ये किया, कल हम मिनरल एनर्जी भी करेंगे, बट कैन वी डू दिस? अच्छा, अब आपका मन है कि सर मैं इसमें डेटा ढूंढना चाहता हूं, अब आप डेटा ढूंढ लीजिए, कॉन्सेप्ट है आपके पास। सो हु आर द लीडर्स इन कल्चर फिशिंग, हु आर द लीडर्स इन कैप्चर फिशिंग? कहां से मिलेगा सर डेटा? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट डेटा देख लो आप, और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत, ग्रुप पे डाल देना। आप देख के हैरान हो जाओगे, इतनी बड़ी लिस्ट होगी, ऑल कंट्रीज का देता है वो, कल्चर अलग देता है, कैप्चर अलग देता है, आप भी बोलोगे टेंशन में। सो उसमें उनके ग्राफ्स देख लेना, मेन लीडिंग क्या है वो करिए, काम बनिए। इज एवरीवन ओके? वाज इट डिफिकल्ट और मैनेजेबल? इंडियन ओशन, ओशन बॉटम रिलीफ डन, पैसिफिक ओशन डन, मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्योंकि काफी ओवरलैप है इसलिए कल कर दूंगा उसको, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। कल की क्लास, अच्छा कल तो हम क्लाइमेट पे कर रहे हैं। एवरीवन, टुमारो वी हैव अ स्पेशल क्लास एट 11:30 ऑन क्लाइमेट, बट मंडे को आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिनरल एनर्जी प्लस कोरल रीफ पे बात कर लूं। कोरल रीफ की थ्योरीज, ये मेरा मंडे का मैंडेट है। आई टोल्ड यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू मंडे। आपके पास एडवाइस है, कल हम एयर मासेस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरिया। अभी तक आपने विंड देखा है, एयर मासेस आर इंपॉर्टेंट, सो टुमारो वी विल बी डूइंग सम बेसिक ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज़ एयर मासेस वैसे भी हमें चाहिए होते हैं। यूपीएससी में, जीएस में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर वाटर मासेस and how do they interact, because Tuesday को then I will start with ocean dynamism, ocean currents पे भी बात करनी है। Is everyone okay? Yes, same time. I think वो चेक कर सकते हैं आप, प्लीज चेक द प्लानर, मेरा सेम टाइम 11:30 डला है, कोई चेक करेगा प्रोफाइल पर? अनिर्बान, इज इट 11:30 होंगी? एक बार चेक कर लीजिए प्रोफाइल पे। तो सुजीत ने चेक कर लिया, 11:30 पर है, और आज शाम को 8:30 पर वील कंटिन्यू विद इन्वायरमेटिक्स। सो थैंक्स अ लॉट, मेक श्योर ये वाला जो आज हमने कवर किया है एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, एंड कंप्लीट योर वर्क ऑन द टू ओशंस, ओशन बॉटम्स। एफएओ अगर आपको टाइम मिलता है खुशी, उसमें चेक करिएगा लेटेस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन।
Thank you. Bye bye. Take care.